लेट्स जस्ट स्टार्ट द रिकॉर्डिंग एंड चालू कर लेते हैं. ठीक है, लेट्स सी व्हाट डू वी हैव टुडे. ओके, सो दिस इज स्पेस प्रोब पार्ट 1. सो देखते आ गया रॉकेट्स. Fireworks are the oldest form of rockets, invented around 2nd century BCE. Okay, rockets. अच्छा, ये लाइन सेम है. During 10th century, Mongols and Arabs introduced gunpowder to the West. Its major use was found in battleship weapons like guns and mortars. Use and development of rockets was minimal. Okay. Koreans developed fire carts, hwacha, what ठीक है उनका लोकल वर्ड होगा, that were capable of firing 200 fire arrow rockets. The devastating nature of war rockets was not their accuracy of power, but their numbers. Thousands of them can be fired at enemy. ये सर ने बताया था मुझे अच्छे से. अरे वो मीम है ना, वो बंदा ही इज रेडी टू वॉरियर है, हाँ ही इज रेडी टू डाई, तो सब पूरा हाथ खोल देता, सामने से दिखाता ना पूरा वॉली ऑफ एरोज आ रही है हाँ हाँ स्काई हाँ, में से, वो यस वही यस है, वो हाचा जो भी था वही हाँ था. हाँ. एंड देन बाद में नोटिस करता है सब मिस करके गए उसको. तो उनका पावर बेसिकली हाँ एक्यूरेसी नहीं था, बट हाँ हाँ नंबर या ऑफ अटैक्स थे बेसिकली. करेक्ट. अच्छा, इधर भी रिपीट है इसके बाद. बाय द 16th century, rockets fell into a time of disuse as weapons of war. Okay. First iron cased rockets were developed by Tipu Sultan and were used very effectively against the British during 1780, 1792 and 1798. The rockets could travel up to 2 kilometers. हाँ, उस टाइम पे 2 किलोमीटर वाज अ गुड रेंज. इसको काम करो, टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, हाँ कॉपी पेस्ट करके वर्ड में डालो या कहीं पे. मैंने वो एक्चुअली वर्ड हाँ हाँ में, भेजा था आपने. हाँ वो वैसे ही किया था सो लाइक. दैट कोई बात नहीं, चलो अपन ऐसे पढ़ लेंगे. इधर है कौन सा फॉन्ट है? बाप रे, CID फॉन्ट. यस यस. Mysorean rockets were adapted and improved further by Congreve. ये क्या है Congreve? कांग्री सर ने 2 बार लिखा वहाँ पे. अच्छा, मैं वही पूरा 2 बार कांग्रीव क्यों आया है? नॉट कांग्रीव, फिर बाद में कांग्रीव रॉकेट्स वे यूज ऐसा अच्छा है. अच्छा, Congreve rockets were used extensively in the subsequent European wars and American wars. Okay. Evolution from fireworks brought about more complex solid fuel rockets which used more exotic and powerful fuels. What to graduated rockets from novelties to sophisticated weapons of destruction. Flying bombs, also known as V1, were rocket powered fighter planes that were full of बेसिक 9/11 वाले स्टाइल के हाँ रॉकेट हाँ थे, हाँ, टारगेट में and हिट करते थे and used to crash सीधा. at target sites. Germans had fired thousands of V1 at London from French coast. ये सर ने बताया था ना कि लंदन यस यस. उन्होंने हाँ अटैक हाँ, किया था. तो उसमें लंदन, ब्लैकआउट करते थे उन लोग. हाँ, और लंदन वालों ने कुछ मतलब उन्होंने ब्रिटिशर्स ने बेसिकली ऐसा कुछ फेंसिंग जैसा बनाया कि उसमें यस यस यस. गिर जाते थे, ऐसा कुछ था. एकदम डिटेल में पता नहीं है, बट ऐसा ही कुछ था समवेयर. हाँ हाँ. V2 missiles developed during World War II was the world first long range ballistic missile using liquid propellants, alcohol and liquid oxygen rockets. Okay. It had a range of 300 kilometers. V2 could deliver 1-ton explosive warhead any warning. Thousands of V2 were built, but they entered the war too late to affect the outcome. इसके ऊपर एक जोक बता दो बाद में. And at the conclusion of war, 300 V2s and majority of principal designers fell into hands of American troops. V2 became basis for intercontinental ballistic missiles. Okay. हाँ वो जो सब डायग्राम में देख सकते हो क्या हुआ हाँ है हाँ, कहाँ पे. ये लाइन है ना. V2 उन्होंने बनाया बट यूज नहीं किया. हाँ टाइम नहीं मिला, वॉर खत्म हो गया. तो उसके ऊपर अपनी जो छोटी अनुष्का है ना, हाँ उसका रिएक्शन था. सर ने बोला कि दे मेड V2 बट अनफॉर्चुनेटली दे कुडंट यूज इट. तो उसके ऊपर अनुष्का, अरे ये क्या रिएक्शन होता है? छोड़ना. Why do you want to end the world? Why? What kind of thoughts are that? डेंजर है वो लड़की. मिलिट्री कैटेगराइजेशन. एज पर मिलिट्री टर्म्स, म्यूनिशंस फायर टूवर्ड, एम्यूनिशंस होना चाहिए ना, क्या है ये? म्यूनिशन वर्ड munitions होता है. munitions fired towards target are classified as
Unpowered munitions not fired from a gun are called bombs. Okay. A powered unguided munition is known as a rocket. Yes. A powered guided munition that travels through the air or space known as a missile. Munitions that are fired from a gun are known as projectiles. If explosives, then they are more specifically as shell or mortar bombs. Okay. Powered munitions that travel through water are called torpedoes. So different different types है basic. Okay. सबका काम है जाके फूटना, हाँ मतलब बराबर. सिर्फ सिर्फ पिस्टल वालों को छोड़ के हाँ. बाकी सबको जाके फूटना है। वो कैसे जाके फूट रहा है उसके हिसाब से वो उन लोग कर रहे हैं किस तरह से पैसे लॉन्च से। किया उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको क्या बोले. हाँ। Not हम्म, fired from gun are called bombs. हम्म, And unguided munitions are called rockets. Powered guided गाइडेड, हाँ। through air or space is known as missiles. Munitions that are fired from a gun are known as projectiles. मतलब वो कैनन जैसा ना, आई थिंक वो सर ने बाद में बनाए तो है वो एम्युनिकेशन, मतलब ऐसा वाला कुछ. लेफ्ट सबसे बॉटम लेफ्ट वाली इमेज जो है, अच्छा ये वाली. बॉटम बॉटम लेफ्ट लेफ्ट, सॉरी हाँ बॉटम. हाँ ये ये ओके. इसको क्या बोलते हैं? नहीं यार ये तो वो नहीं है मेरे हिसाब से. नॉर्मल हैंड पिस्टल हो गया है, तो हैंड पिस्टल हाँ के ये वो होना है। चाहिए, ये होना चाहिए. प्रोजेक्टाइल्स. इफ एक्सप्लोसिव्स दे आर मोर स्पेसिफिकली एज शेल और मॉर्टर बॉम्ब्स. तो मॉर्टर बॉम्ब्स तो शायद ये होना चाहिए. नहीं ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो पता नहीं. ठीक है देखते हैं बाद में. पावर्ड म्यूनिशंस दैट ट्रैवल थ्रू वाटर आर कॉल्ड. तो ये वो तो सबमरीन से दिख रहा है। ट्रैजेक्टरीज आई है। with initial velocities of v0 through angle of alpha. अच्छा v0 वेलोसिटी है, एंगल अल्फा है. V0 ऊपर वो डायगोनल वाला है। हाँ हाँ ऊपर उन्होंने, हाँ सॉरी v0 ये है. उन्होंने क्या बोलते हैं डिवाइड साइन और साइन हाँ कॉस में. यस. साइन एंड कॉस में। फिर v वो अपना इक्वेशन ऑफ मोशन आती है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हाँ हाँ u प्लस एटी करेक्ट. उससे t और r निकल जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो t इज इक्वल टू 2. हाँ इसमें t इज इक्वल टू 2 बिकॉज तू तेरा ऑब्जेक्ट, मतलब जो तू फेंक रहा है प्रोजेक्टाइल, हाँ वो पहले ऊपर तक रीच करेगा, फिर सेम टाइम में नीचे भी आएगा, तो उसके लिए वो 2, मतलब अच्छा ये एंगल की वजह से. हाँ ऐसा। हाँ फॉर दिस तो तू फर्स्ट से निकालेगा सिर्फ पीक तक पहुंचने का, देन उसको 2 going से down. कर देगा मल्टीप्लाई, या देन गोइंग डाउन. ओके. हम्म। तो 2 टाइम्स v0 साइन हाँ तो बेसिकली आप ऐसे देखो ना, साइन ए टॉप अपॉन जी तक, दैट हाँ इज. हाँ टॉप तक पहुंचने के लिए क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बराबर. हाँ तो टाइम के लिए क्या करना आप, टाइम को उधर भेजोगे एंड डिस्टेंस अपॉन नहीं, सॉरी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वैसे कुछ तो था, मुझे अभी याद नहीं, अभी मैंने बहुत पहले पढ़ा था। ओके ठीक. या तो वो था या तो ऐसा कुछ तो है। देन r इज We'll have to find it out. करो करो, आप कंटिन्यू करो। r is equals to v0 square 2a upon g. ठीक है. इवन आई नीड द एक्सप्लेनेशन. ये जरा सर्च करो. क्या क्या क्या? ये सर्च करो जरा. अच्छा ये वाला, रुको रुको रुको, लॉज ऑफ मोशन ये ना स्लाइड ही पूरा ये डाला. आज मैंने एक्चुअली 80 को एग्जॉस्ट कर दिया है मेरे वाले. साइन इक्वल टू, अरे मैंने किया है इसमें, मैं बता रहा था एक है ना। हाँ तो अगर आपको Camps. याद आ रहा है तो मुझे बताओ. अरे कौन से पत्ते पलट रहे हो? भाई मैं आजकल वो वाले पेजेस पे लाइक लिखता हूँ, भी फाड़ देता हूँ, मतलब ऐसे लाइक बुक से निकाल देता हूँ, स्पाइरल वाली बुक से। मैं बोला क्योंकि कौन सा उसमें वाला बुक है इतना बड़ा, वो क्या A1 साइज वाला बुक है क्या जिसपे अपन इंजीनियरिंग साइंस निकाला करते थे? नहीं नहीं उतना ही नहीं यार, A4 ही है। वो ऐसा दोनों दोनों हाथ से उठा के इधर से उधर. Rocketry is never gonna be easy. I knew it. ओके ओके, मैं एक्चुअली फोटो भेजता हूँ ग्रुप पे, इफ यू कैन मेक सेंस तो बहुत अच्छा है। इधर है ग्रुप। हाँ वो फोटो भेजो, देखो व्हाट्सएप पे जो भेजा है। हाँ
इससे ये वाला इक्वेशन याद है आपको, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हाँ ये मालूम है, हाँ। हाँ, तो v आपका मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 रहेगा एंड उससे आप यस। यूज करके आपको 80 वेलोसिटी आपका 80 आ जाएगा। ठीक है, अभी स्पीड ये आ गया आपका, और आपको चाहिए क्या था, टाइम। हाँ रुक जाओ, मैं फिर से कुछ तो गलत किया, फिर से कुछ गलत, एक मिनट रुको, गलत। क्या क्या, यूर ऑन म्यूट, हाँ ठीक है। लेट मी सी आगे का, नहीं ये देखना ही पड़ेगा, अदरवाइज समझेगा ही नहीं आगे का टॉपिक। अरे इसको क्या हो गया? चैट जीपीटी का आजकल लिमिट एग्जॉस्ट कर दिया है। अरे तू ते फ्री वाला नाही वापरला? फ्री वालाच वापरलं रे. नाही नाही, 1 रुपयामध्ये 1 वर्षाचं सबस्क्रिप्शन आहे. नाही ते नाही माहिती मला. अरे हा, नाही मी मी खरंच नाही माहिती. अरे ऑगस्ट का सप्टेंबर पासून चालू झालंय ते. ओके. 1 रुपया भरायचा, 1 वर्षाचं सबस्क्रिप्शन भेटतं, त्याच्यानंतर मग तुझं चालू होतं पेमेंट, पण ते बंद करून टाकायचं. मी तर मोबाईल मध्ये आणि लॅपटॉप मध्ये दोन्हीमध्ये वेगवेगळे अकाउंटने करून घेतले ते. ते सेवच नाही केलं. अरे वो मैंने गलत फोटो भेजी है, गलत फोटो भेजी, सॉरी सॉरी। एक मिनट, एस्ट्रो हम लोग रॉकेट वाला कर रहे हैं ना। करो तब तक, मैं यहाँ भी देख रहा हूँ. या और 10 मिनट के लिए मेरा ये है शायद. भेजा है, अभी देखो। मिनट्स टू अपलोड. मतलब तक क्या था, स्पेस फोर्स 1। हाँ, ये निकालना है। तो पहले लेफ्ट में देखो जो इमेज बनाई है, तो लेफ्ट में, लेफ्ट साइड वाले, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए इज इक्वल टू माइनस जी। हाँ, राइट में, हाँ ये हाँ वाला. दिस वन। हाँ, राइट है वो. और हाँ मैंने क्या बोला, लेफ्ट, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ किधर. लेफ्ट बोला मैंने। हाँ ओके ठीक है ठीक है. ठीक है, हाँ, u इज इक्वल टू आपका, हाँ बिकॉज हम लोग टॉप पे निकाल रहे हैं ना, मतलब जब वो यहाँ तक. फॉल स्टार्ट होगा यहाँ तो पे, हाँ. इनिशियली हाँ वहाँ पे आपका u हो जाएगा v0 साइन अल्फा वर्टिकल लाइन में, और हाँ. u आपका फाइनल वेलोसिटी 0। बराबर, क्योंकि वहाँ पे हाँ स्टॉप हो जाएगा, फिर रिवर्स आएगा. यस, तो उससे t ये आ जाएगा एंड सब्स्टिट्यूट कर दिया फिर वैल्यूज। ठीक है, तो v0 बाय साइन अल्फा। अब लेफ्ट में आते हैं, मतलब वो लिखने का स्टाइल अलग ही था मेरा, बहुत अलग चल रहा था। ठीक है. हाँ, तो आपको ये मिल गया, बिकॉज ऑब्जेक्ट को एपेक्स तक जाना है, देन इट हैज टू फॉल बैक, तो t इज इक्वल टू v0 बाय g साइन अल्फा आ जाता है। ये जस्ट फर्स्ट टर्म आती है, एंड सेकंड टर्म के लिए थर्ड एक सोहन को पता रहेगा, इक्वेशन ऑफ मोशंस में थर्ड वाला क्या रहता है, डिस्टेंस एंड स्पीड वाला। सोहन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये है क्या, पहले ये बताओ. आर, व्हाट इज आर? r मतलब जो आपका जो ये वो जो बॉटम राइट में जो ग्राफ बनाया है, राइट, ये वाला. हाँ हाँ, तो कितना डिस्टेंस में वो ट्रैवल करेगा, दिस ये वन। वाला डिस्टेंस. यस, आई थिंक इसका भी मैंने सॉल्व किया है। यस यस वी किया है। स्क्वायर. हेलो हाँ अनिकेत, हाँ हाँ बोल बोल. काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन डालो ना, उस पे आएगा हाँ वो हाँ, वो उस इक्वेशन। पे है, उसी पे आएगा। यस, काइनेमेटिक्स थर्ड ऑफ मोशन पे है। यस, इक्वेशन। यस, पीपीटी मध्येच. नहीं हो नहीं नहीं, नहीं गूगल जीपीटी पे, वर हाँ, या फिर एस जीपीटी पे। कहता है, हाँ ऐसा काइनेमेटिक. इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ, मोशंस, हाँ या हाँ ये देखो, ओके, ये वाला आ गया इस पे। वन इमेज इन न्यूटन. दिस वन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, थर्ड वाला। ओके ठीक है.
Okay, so just explain this, then we'll go ahead. मैंने फोटो भेजी है, वापस देखो थर्ड इमेज, अब मेरे को भेजी है। हाँ, Okay. सो अभी हम लोग को डिस्टेंस निकालना है इस बार। Distance traveled by the हाँ, ट्रैजेक्टरी। okay. हाँ, Speed distance upon time, ठीक है, distance speed into time, बराबर। तो ये x जो है वो हाफ वाला इज v o x मतलब v0 और इनटू, हाँ वो थोड़ा लिखने का वो x लिखना था हाँ एक्चुअली, क्या लिखा मैंने भी हाँ पता नहीं। ठीक है, t इनटू t। into t, अभी हाँ t क्या है कि लाइक वो ऊपर वाली इक्वेशन से निकाला था ना, हाँ ये वो यूज वाला, करेंगे। हाँ, तो t उसको वो कर दिया। इक्वेशन 1 बिकम्स आपका हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू वर्टिकल स्पीड बाय g। एंड यहाँ पे आता है कि हाँ, सब्स्टिट्यूटिंग दिस इज दैट, ये आ गया। ये क्लियर हुआ ये पार्ट, मतलब ओके हाँ, सब्स्टिट्यूट किया है। सब्स्टिट्यूशन हाँ, हाँ हाँ, जस्ट सिंपल सब्स्टिट्यूशन। वी दोनों में था तो वी स्क्वायर हो जाएगा वो, बराबर, और साइन थीटा कॉस थीटा। ट्वाइस ऑफ अभी थीटा, साइन, हाँ, टू साइन थीटा कॉस थीटा को कैन बी रिटन है साइन 2 थीटा। हाँ तो इससे वो आपका वो आ गया। तो आपका पीडीएफ में जो था ना, हाँ जो स्टार्टिंग के 2 इक्वेशन से वो आ ये गए। यस, अब यही पहुंच गए, ठीक है, ओके यहाँ तक पहुंचे। हाँ। So when would आगे RB का maximum, आगे का मैं भी नहीं कर पाया था। मैं बोला मैं अब थक गया हूँ, ये क्या कर रहा है। ठीक है ना, देखते हैं चलिए। हाँ, When would RB maximum, यानी डिस्टेंस कब ज़्यादा travel करेंगे, दैट इज 45 जब साइन आपका 45 साइन, डिग्रीज होगा, हाँ, साइन आपका मैक्सिमम कब आता है, वैल्यू 1 देता है। 1 देता है, यस हाँ, और वो कब देता है, 90 डिग्री पे। तो हाँ मतलब 2 अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज implies अल्फा विल बी 45 डिग्रीज। ओके। So फिर ये क्या है, V0 cos डिस्प्लेसमेंट है, ओके डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड बाय टाइम, हाँ, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू तो हाँ, तो वो किया देयर, और फिर क्या लिखा, v इज इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर। हाँ, अपना सेकंड इक्वेशंस ऑफ मोशन याद है क्या आपको अभी भी, अनिकेत? नहीं, वो वाला वो देखो, या जो सेकंड वाला लिखा है ना, ये वाला, सॉरी सेकंड नहीं, थर्ड वी टी ये प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ओके, हाँ, ये याद है, हाँ हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है, v जीरो आपका 0 हो रहा है हाँ एंड a इज टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स, राइट? मतलब बराबर, ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है, सो हाँ माइनस a बिकम्स माइनस g। माइनस, हाँ हाँ, और अब आके आप तब वो इक्वेशन बनता है y इज इक्वल टू सिंपली ओके हाँ, हाफ, ये वाला इक्वेशन, v साइन 0 साइन वाला सॉरी equation. 0, हाँ, एंड द माइनस जी टी स्क्वायर। GT मैंने एक्चुअली वहाँ पे बोला v 0 हो रहा है, वो एक्चुअली नहीं, वो साइन अल्फा में लिख के छोड़ दिया है। हाँ, then y एंड equals देन to y इज इक्वल टू x x tan alpha, माइनस, ये कहाँ से आया मेरे को भी पता नहीं है। ये प्रूफ करने नहीं आएगा ना, डेराइव करने नहीं भेजे सर, नहीं बोलेंगे ना कि करो कभी। नहीं करना ही है, ये कौन बोलेगा, तो क्यों कर रहे हैं हम? नाही वो असं भी काही है। नाही, सांगू पण शकतात, यू नेवर नो दॅट, पण डिराईव्ह करायला सांगणार, डायरेक्ट इक्वेशन्स येतील. ना ना ना, ही इज शेट्टी सर, ही कॅन डू एनीथिंग, So x is equal शेट्टी to सर एन्जॉयज अस गोइंग इनटू ग्रेव्स आफ्टर एग्जाम्स, वो वाला मीम याद आता है मुझे, वो हाँ, वो ग्रे पे पोज दे रहे सर। मैंने देख लिया, CI3 के टाइम मैंने देख लिया, क्या कर सकते हैं सर, सो लेट्स हाँ, नॉट, हाँ, समझा समझा, रुको 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 रुको, दिखा, रुक जा, रुको, समझा। कितना टाइम है और यहाँ पे वो जो मुझे? फर्स्ट इक्वेशन थी ना, चलो 2 मिनट्स का ही टाइम है, सुनो सुनो, हाँ, x इक्वल टू जो लिखा है ना जस्ट ऊपर, ये वाला हाँ, इससे t निकाल, t इससे t कैसे बोलोगे आप, t इज इक्वल टू x बाय v जीरो कॉस ये अल्फा, सारा राइट? हाँ, ये आइटम हाँ, अब वो इक्वेशन में आगे डाल दो, तो यहाँ पे तो डाल साइन, दिया, हाँ, यहाँ पे साइन बाय कॉस हो जाएगा, इसके लिए वो tan वो अल्फा कर tan दिया अल्फा सर हो ने, गया, ठीक है, एंड देन आगे का वो सब्स्टिट्यूशन चल रहा है। और फिर वो tan का थोड़े लिखने का स्टाइल बहुत गंदा है जो आगे हो रहा है ना, V0 क्या किया, कट हो गया, साइन बाय कॉस हो गया, यस, वहाँ पे हाँ, x tan अल्फा हुआ V0 माइनस, कट हुआ, tan हाँ, अल्फा, हाँ, यस, वो ठीक है। आगे का टर्म देखो ना, हाफ जी टी स्क्वायर बाकी है, हाँ तो बराबर, वहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, और फिर नीचे कॉस स्क्वायर हो जाएगा वैसा, और ये अच्छा दिस टी को थिंग, यहाँ पे डाला है ना, ये हाँ, हाँ, दोनों साइड टी था ना, दोनों टर्म हाँ में टी हाँ है हाँ, दोनों देखो। टर्म में था, बराबर, अब
कॉमन क्या लिया है, अभी आर ऊपर से भी उठा के सर ने वापस कांड किया है वो। अरे यार सर को भी लग रहा था कि नहीं आएगा। स्क्वायर अल्फा, यहाँ तक तो समझा मुझे, ठीक है। हम्म। उसके आगे एक्चुअली कैसा है ना, वो एक कॉमन मल्टीपल लेते हैं ना ताकि लिखने में आसान पड़े, सर ने वो किया है। ये वाला, हाँ बट थोड़ा लिखने का मेथड थोड़ा गलत है। इसमें कैसा लग रहा है कि tan ऑफ अल्फा इंटू 1 - x/r है, राइट? हाँ ऐसा ये फील हो इसको रहा है, मल्टीप्लाई किया हुआ लग रहा है। एंगल को मल्टीप्लाई किया, बट वो नहीं हो रहा है। वो बाहर है, मतलब tan अल्फा सबसे लास्ट में हाँ लिखना ये चाहिए। अलग है, हाँ और हाँ, इस टर्म को 1 माइनस किया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, कैसे लिखना चाहिए, x इंटू 1 - x/r देन इंटू मल्टीप्लाइड बाय tan अल्फा, वैसा, ताकि अच्छा, वो कंफ्यूजन नहीं हो कि ये एंगल किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, हाँ 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 हाँ, वैसे। बराबर बराबर, ये तो उसको सर ने टर्म कॉमन आगे करके, होना चाहिए, इधर होना चाहिए। हाँ यस, ओके, उसको आगे करके सर ने बस अच्छे से लिखने की कोशिश की थी। ठीक है। हाँ, इफ द launch is from an इन द फॉर्म ocean, एलिवेशन ऑफ, हाँ, then r तो इक्वेशन चेंजेस, यस, v0 cos alpha into sin रूट ऑफ, square root हाँ, of v0 sin alpha square plus 2g y0 upon g। बेसिकली तो यहाँ मतलब पे कैसा है ठीक ना, है। हाँ हाँ, इस नहीं नहीं, देखो देखो, स्टार्टिंग में क्या था, जो इक्वेशंस हमने बनाई ना, दे सेड कि आप आपका ग्राउंड जीरो, आप सेम प्लेन में हो, यू हाँ मतलब बॉल फेंकोगे तो सेम प्लेन में आएगी। हाँ 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 बट इसमें क्या हो रहा है कि तुम्हारे पास हाइट एक्स्ट्रा है, तो मतलब तुम सेकंड फ्लोर से फेंक रहे हो या थर्ड फ्लोर से हाँ फेंक हाँ रहे हो हाँ, बॉल, बराबर एंड वो नीचे गिर रही है, बराबर। वैसा है। तब वो इक्वेशन थोड़ी चेंज होती है, हाँ बिकॉज तुम्हारे पास एक्स्ट्रा हाइट थी। हाँ, तो उसके लिए कंपेंसेट थोड़ा करना पड़ेगा। हाँ हाँ, यस, थोड़े फॉर्मूले चेंज होंगे। यस यस, ओके। दैट इज वी, साइन, ये तो यही है, हम्म, v0 sin alpha प्लस 2g y0। अच्छा, y0 इज द एलिवेशन, ठीक है। हाँ, एलिवेशन, और एलिवेशन टू आया, आई थिंक हाफ 80, नहीं नहीं, हाफ जी तो आपका एक्सेलरेशन होता है, हाँ। बट कहाँ से आया मुझे भी नहीं पता ये एंड पार्ट। ट्वाइस क्यों हुआ है ये आई ये? थिंक, हम्म तो उन्होंने ये टर्म को ही, ये जो टर्म है ना, हम्म, इसी को यहाँ पे रिप्लेस किया है, आई गेस। वी प्लस, एक मिनट, चलो ये इधर आ गया है हाँ हाँ, मेरा, लेट्स अपलोड इट। इसका एक बार देखो ना आपको कितना मिल रहा है सब्सक्रिप्शन का, जो ऐसा भी सोहन बता रहा था ना। यही है ना, हाँ, मैं देखता हूँ बाद में, चलो पहले कर तो लेते हैं। नहीं, ओके, लाइन बोलो उसको, अरे बाप रे, आज जैसा लास्ट टाइम कल किया था वैसा सेम, देखते ना क्या चलता है। अरे वो एक मैंने किया था बुकमार्क, उसमें मस्त फॉर्मूलेस थे सारे चलो रिलेटेड चलो, टू दिस थिंग। ठीक है, देखते हैं इधर। Since you throw an object with speed v0 at an angle alpha from the horizontal, okay, we break velocities into two part. Horizontal is v cos alpha, वो तो उसमें दिया है, v cos alpha, vertical is v sin alpha, ठीक है। Time of flight is equals to t is equals to 2 v0 sin alpha upon g। This is the total time of the object stays in air, मतलब 2 times क्यों, पहले तो ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, यस, ठीक है। y going up slows down due to gravity, at top vertical velocity 0, time to go up is equal to 0, time to go up and down double, ठीक है, वही उसने दिया, ठीक है। रेंज, अच्छा रेंज, आर इज द रेंज, डिस्टेंस बेसिकली, बराबर। हाँ, v0 square sin 2 alpha upon j, this is how far it travels horizontally before landing। y range is equal to horizontal speed into total time, so horizontal speed is v cos alpha बराबर, एंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो अपन ने अभी निकाला है, ये वाला। तो इफ यू मल्टीप्लाई दिस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, अच्छा क्या किया है यहाँ पे, कोई आया है क्या, आवाज आई मेरे को। हाँ मुझे भी कुछ आवाज़ आई, किसी ने कुछ डाला है क्या ग्रुप पे, नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यूजिंग आइडेंटिटी 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा, जो आपने अभी बोला। हाँ हाँ, वही। ओके, सो आर इज इक्वल टू टी स्क्वायर
वी स्क्वायर ओके साइन 2 अल्फा अपॉन जी, ठीक है. When is range maximum? When would R be maximum? Since R is directly proportional to sine 2 alpha, yes. Minimum value of sine is 1. So sine 2 is equals to 1, 2 is therefore alpha is equal to 45. ये आपने बोला. हाँ हाँ तो मतलब मैक्स 45 डिग्री पे जब हम फेंकेंगे यस प्रोजेक्टाइल उसको प्रोजेक्ट करेंगे तो फिर वो हम्म मैक्सिमम डिस्टेंस जाएगा उसका. डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन डिस्क्राइब पोजीशन एट time t. Okay, so x is equals to v0 cos alpha into t. No acceleration horizontally, so motion is uniform. Okay, once project कर दिया तो फिर बाद में acceleration तो नहीं होगा. Vertical y equals to v0 sin alpha into t minus half of gt square. ये अभी जो इसमें देखा ये या gravity pulls downwards, so acceleration is negative d, negative g. Trajectory equation path, they combine x and y to remove time. Okay, final form y is equals to x tan alpha g. इसने भी सीधा सीधा वही बता दिया. अच्छा वही बता दिया, ठीक है. चलो ठीक है. ठीक है This is the नेक्स्ट equation अपने of को नेक्स्ट parabola. देखना है. So projectile path is always curved parabolic. Okay, visual हम्म, understanding इसने कुछ दिया है, ठीक है. अच्छा यहाँ पे कुछ दिया है उसने. हाँ स्लाइड करो ना. ये अल्फा आप एंगल डाल रहे हो, एंगल इज बहुत डेंजर चेंज हो रहा है. ठीक है, ग्रेविटी तो चेंज करने की जरूरत नहीं है. वेलोसिटी नहीं नहीं ग्रेविटी तो 9 में डालनी चाहिए सिंपल. ओके ठीक है. If launched from height y0, r is equals to v0 cos alpha into v0 sin alpha square plus 2g y0 upon g. Now object doesn't start from ground, it has extra height y0. Okay, effect it stays in air longer, so range increases. Okay, तो इसके लिए उन्होंने ये किया है, सब्स्टिट्यूट किया है. That's why formula changes, because already we are not starting from zero from the ground, extra height से कर रहे हैं. Okay, important assumptions. Flat surface and no air resistance. This means ground is level, air drag is ignored. In real life air resistance reduces range, path is not perfectly symmetric. ठीक है. Split velocity into x and y. Horizontal motion is equal to constant speed. Vertical motion affected by gravity. Path will be parabola. Maximum range at 45 degrees. ठीक है. So however these equations assume a flat surface and no air resistance. ये सर ने भी लिखा. Okay, Yeah. let's see next. यहाँ पे मैं थोड़ा zoom in कर देता हूँ, so for better understanding. 30 मीटर्स पर सेकंड 45 डिग्रीज में 30 मीटर्स पर सेकंड का स्पीड, 40 मीटर पर सेकंड का स्पीड, 50 मीटर पर सेकंड का स्पीड. ठीक है, डिस्टेंस बढ़ते जाएगा. हाँ नहीं नहीं इसका एक और रिलेशन भी था कि यू हैव टू थ्रो इट 4 टाइम्स फास्ट. मतलब अगर आपने 30 पे फेंका है राइट, तो डिस्टेंस मान लो उसने x किया, हाँ 2x करना है तो यू हैव टू स्पीड 4 ऑफ द वेलोसिटी. पहला वाला जो फेंक रहे थे ना, तब जाके वो ट्वाइस होता है डिस्टेंस. ये कहीं पे मैंने पढ़ा था, लाइक ऐसा है. नहीं, ट्वाइस द डिस्टेंस नहीं ना. अभी 91 से तो ये तो डबल से ज़्यादा ही हो गया ना. तो हाँ बट 60 पे फेंका नहीं ना उसने. रुक एग्जैक्टली जाओ. हाँ हाँ कहीं तो मैंने पढ़ा था, मुझे याद नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ. मतलब आपने किसी नहीं, ने तो पढ़ा आर तो रहेगा. इससे भी निकाल सकते हैं ना हम लोग. कहाँ पे गया एक फॉर्मूला, आर हाँ वो भी कर इससे भी सकते निकाल हैं. सकते हैं ना. so रुक जा. हाँ ई स्क्वायर आर ये इससे निकाल सकते 40 है. नहीं नहीं ये तो हैं. आपका सॉरी, ये तो वो हाइट वाला वाला है, है, वेलोसिटी ऊपर वाला है. हाँ एलिवेशन वाला है, इससे ही निकालना. हम्म साइन 2 अल्फा अपॉन जी, तो ये निकालना है, कैलकुलेट करना है क्या? सो कुछ है मीटर पर सेकंड. v0 इज द इनिशियल वेलोसिटी ना, 30 मीटर पर सेकंड वाला. साइन 45 का ऑलरेडी 1 है, तो वो बाय जी हम लोगों को सिर्फ v स्क्वायर 30 स्क्वायर बाय 9.8 डिवाइड करना है. 30 स्क्वायर कितना होगा? 900. 900 बाय 9 तो आपका 100 डिस्टेंस कुछ आना चाहिए. हाँ तो अगर बराबर अगर उतना जी ही आ को रहा मैं 10 ले लूँ तो है. 9.8, हाँ 90 आएगा. उतना ही आ रहा है. 91 पॉइंट हाँ. समथिंग आ रहा है, बराबर है. सो सिमिलर 40 मीटर y स्क्वायर 40 के लिए करके देखते हैं. का स्क्वायर इज 1600 100 हाँ बाय 16. 9.8. हाँ 163 आ रहा है, बराबर. सो दैट इज कहीं पे तो मैंने पढ़ा था. सिंपल. ओके, तो बेसिकली इफ यू हैव स्पीड हाँ तो यू कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस आर. सिंपल फॉर्मूला. ठीक है चलेगा. v0 इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल अगर चेंज करते जाएंगे तब भी वैल्यू यस या फिर साइन 2a का वैल्यू चेंज होता जाएगा, है ना. हाँ हाँ साइन 2a का वैल्यू चेंज होगा, तो इसके लिए
अच्छा आगे ही पड़ा था, इसी में है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाओ, जो मैं बोल रहा था वही है। Okay. या Trajectories. But what if there is assumption of no air resistance is taken out? Okay. तो अगर वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर हम एयर रेजिस्टेंस अगर हमने निगलेक्ट किया तो वो अगर नहीं किया करेंगे निगलेक्ट तो क्या होगा? V0 is equal to 2, 4, 6, 8, 10. To double the throw distance, we need to increase initial velocity 4 times. जब वो तो 2 है वेलोसिटी, तो 1.2 पे डिस्टेंस गया फॉर एग्जांपल। अगर V0 is equal to 4 तो 1.7 या 8 आई वुड से 1 डबल करना है तो 2.4, तो 2 का 8 करना पड़ेगा। ओके, सो 4 टाइम्स वी हैव टू इंक्रीज द वेलोसिटी। या वी कंसीडर द एयर ड्रैग, एयर रेजिस्टेंस अगर कंसीडर करेंगे तो ठीक है। मेजर डिस्टेंस ऑफ क्या 6 इन क्रिकेट। क्रिकेट? अच्छा, 6 इन क्रिकेट। क्रिकेट ये क्या है? छक्का बना रहे हैं हम लोग। Trajectories. When a projectile without air resistance travels a range that is significant compared to the Earth's radius, the curvature of the Earth must be considered. Yes, ये भी तो एक प्रॉब्लम है. The trajectory then generalizes from a parabola to Kepler ellipse with one focus at the center of the Earth. The projectile motion then follows Kepler's law of planetary motions. Okay. So ये apogee perigee वाला ना? देंगे तो ओके, इफ आई रिमेम्बर इज करेक्टली, अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया तो इट विल व्हाट यू कैन से, ये अगर नॉर्मल वेलोसिटी है तो 4 टाइम्स अगर करेंगे तो इट शुड कम बैक हियर। नॉट 4 टाइम्स नहीं, वो सर ने बस बोला कि लाइक एक स्पीड में ऐसा हाँ, अगर गोल घूम के आना चाहिए आएगा भी नहीं हाथ में। हाँ, बट ओके, हाँ ठीक, याद है भाई, ये लेक्चर में मैं बहुत नींद में था, बट आधा चीज़ें याद आ रही है मुझे। दिस इज गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, राइट? टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, हाँ या ठीक है। सर्कल इज या एक्सेंट्रिसिटी 0 है तो सर्कल है वो प्रॉपर। अच्छा, वापस से कॉपी करना पड़ेगा। ये सर ने ना इधर का उधर लिया है। ये आई थिंक सब साथ में होना चाहिए था ना, कोल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर के टाइम के रॉकेट्स। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो है अभी, एटलीस्ट वी हैव पीपीटी। भाई अभी सिर्फ किसका बाकी, ऑप्टिक्स का ही बाकी है ना पीपीटी, अगर सर ने दिया नहीं है तो। ऑप्टिक्स का बाकी है, टाइम इन एस्ट्रोनॉमी है, टाइम इन एस्ट्रोनॉमी, हाँ या अरे एक और था, वो पुराणिक सर का कौन सा था? डे लाइट एस्ट्रोनॉमी वो नहीं, मॉडल्स कौन सा था ना, वो जो सर ने वो स्फीयर लाया था। अच्छा वो वाला इंट्रोडक्शन, आई थिंक सेलेस्टियल स्फीयर का इंट्रोडक्शन था बस। पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी वो भी नहीं है अपने पास। ठीक है, देखते हैं। एट द ऑनसेट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, Germans were more adept practical aspects of handling rockets. However, Americans were more foolproof on mechanics and physics behind the rockets. Americans had also developed rockets, but they were never effectively put as warheads. Okay. Employing one of the captured V2 rockets and a WAC rocket, WAC rocket, on its top, US launched Bumper project while reached a height of whopping 400 kilometers. It is the largest two-stage rocket till date. अच्छा, अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा हाइट अचीव किया हुआ रॉकेट यही है, 2 स्टेज, ठीक है। At the conclusion of World War II, the Soviet Union and the United States engaged in a race to space. Soviets won the first round by launching Sputnik satellite in 1957. Within months, Sputnik 2 reached space with a living passenger, Laika. Americans launched Explorer 1 in the subsequent year. In 1961, Soviet cosmonaut Yuri Gagarin became the first human to venture into space. His spaceflight lasted about 1.8 hours, during which he orbited Earth once, reaching a maximum altitude of 315 kilometers. He ejected himself from the capsule during re-entry and parachuted Damn, बंदे के अंदर बॉल्स बहुत ज्यादा थे, बड़े थे। हाँ भाई, उसका खुद का हीट शील्ड अच्छा था, मतलब हाँ ना, हीट शील्ड भी नहीं, मतलब जब आ गया तो सी कैसा है कि ना रशिया के यहाँ पे सी नहीं है ना ऐसा,
हाँ ओशन नहीं है बेसिकली। हाँ तो इम्पैक्ट तो क्या ग्राउंड पे सीधा वो टारगेट हिट करेगा, सो उसके लिए ही हैज टू लीव इट। हाँ, वो कुछ ऐसे किसी के फील्ड में गिरा था, उसको लोग हेल्प नहीं हाँ, कर फील्ड में भी पाए। गिरते हैं यूजुअली ऐसे, बट ऐसा कुछ हुआ था, सब हम्म, बताया था कि वो सब स्पेस सूट में था, तो पीपल आर थिंकिंग कि सम एलियन हैज कम डाउन हाँ, हुआ था, एंड नो हेल्प वेयर देयर फॉर हिम, ऐसा कुछ हुआ था। आई डोंट ओके। इन डिटेल्स, ठीक है। अदरवाइज ड्यूरिंग कोल्ड वॉर लाइक सी, क्या, यस यस, मतलब वही ना, आधा इधर लिखा आधा उधर, लाइक हाँ ठीक है कंसिस्टेंट अभी रहो ना यार। चलेगा, अभी कुछ तो है एटलीस्ट। President हम्म, Kennedy challenged America to send an American to the moon by end of the decade. In 1966, Soviet Luna 9 was the first spacecraft to land on moon. Zond 5 was first to carry life from Earth to the vicinity of moon and return. Oh good. ये मुझे भी नहीं पता था Zond 5. However, US triumphed the Apollo series. NASA developed three-stage Saturn V rocket that carried a capsule with a small propulsion unit for the return trip and the two-stage lunar lander. Launched in 1971, Russia's Salyut 1 became the first crewed space station. It remained in space for 175 days. In 1973, using modified third stage of Saturn V rocket, US launched its first space station, Skylab, into Earth's orbit. Three astronauts remained in space for 84 days. भाई वीनस का भी, से- ए मर्क्यूरी का 88 डेज रहता है ना? हाँ 88 डेज मर्क्यूरी बाप रे, उतना देख क्या है। रिवोल्यूशन पीरियड, हाँ। सही है। हाँ बट ठीक है यार, 1970 कंसिडरिंग दैट टाइम 84 डेज वाज गुड इनफ कैरिंग astronauts, मतलब बेसिकली यस यस यस। राइट। हम्म वो लोग वापस से डॉकिंग करके सप्लाईज तो दे नहीं सकते थे उस टाइम पे। हम्म। एज अ वन टाइम मिशन 84 डेज आर स्टिल गुड। बाप रे, कितना फ्यूल ले, like, कितना फूड लेके गए रहेंगे। कितना फ्यूल, कितना फूड, वॉट एवर, हाँ ना। बहुत सारी चीज़ें थी, नॉट नथिंग लेस। आई विल गिव फुल क्रेडिट टू दिस। मिशन मोड्स, the Apollo mission planners were faced with the challenge of designing a spacecraft that could meet it while minimizing risk of human life, cost, and demands on technology and astronaut skills. Four possible mission modes were considered. Direct ascent, हाँ मतलब बेसिकली हाउ डू दे गो टू द मून। कैनेडी ने तो बोल दिया कि हाँ हम जाएंगे, हम्म कैसे जाएंगे उसे खुद नहीं पता था। इट वॉज अ गुड चैलेंज। Direct ascent. The spacecraft would be launched as a unit and travel directly to the lunar surface without first going into lunar orbit. 23,000 kg Earth return ship would land all three astronauts atop a 51,000 kg descent propulsion stage, which would be left on the moon. This design would have required development of the extremely powerful launch vehicle to carry a 74,000 kg payload. ये तो बहुत ज़्यादा है। Earth orbit rendezvous. Multiple rocket launches, 3 to 15, would carry parts of direct ascent spacecraft and propulsion units for translunar injection, उसके orbit में जाने के लिए. These would be हम्म assembled into a single spacecraft in Earth's orbit. That was also a good idea, हम्म I think. Lunar surface rendezvous. Uh, Two spacecraft would be launched in succession. The first, an automated vehicle carrying propellant for the return to Earth, would land on the moon, to be followed sometime later by the crewed vehicle. Propellant would have to be transferred from an automated vehicle to the crewed vehicle. ये भी अच्छा आइडिया था, पहले फ्यूल भेज दो वहाँ पे, वो लैंड करेगा, देन यू गो देयर, यू ट्रांस, और इसको पिकअप करोगे, यस। हाँ पिक अप द फ्यूल एंड कम बैक। ये भी अच्छा आइडिया था। लूनर ऑर्बिट रेंडेवू. A single rocket launched a 44,000 kg spacecraft that was composed of a 29,000 kg Apollo command and service module, which remained in orbit around the moon, and 15,000 kg two-stage Apollo lunar module spacecraft, which was flown by two astronauts to the surface हम्म to dock with the command module and was then discarded, landing the smaller spacecraft on the moon and returning an even smaller part, 4,555 kg, to lunar orbit, minimize the total mass to be launched from Earth. But this was the last method initially considered because of the perceived risk of rendezvous and docking. हाँ यार डॉकिंग एंड वो सब चीज़ें उस टाइम पे
इमेजिन कर उतना प्रिसिशन बहुत मुश्किल होता है ना यार यस लाना। यस एंड कंसिडरिंग के मून के हम्म पास इतना थिक एटमॉस्फेयर भी नहीं है, सो हम्म उतना नहीं मिलेगा, उतना प्रोपल्शन ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। मेनी थिंग्स वर देयर, सो बट दे यूज दिस राइट, यही तो यूज़ किया है उन्होंने, नॉट या द फर्स्ट थ्री। ओके, सैटर्न वी लॉन्च रॉकेट, कहाँ से पढ़ना शुरू करना है, यहाँ से यहाँ से करते हैं, हर तरफ से यस, यहाँ से ही करते हैं। लेफ्ट It से was यस। 363 feet, 111 meter, about the height of 36-story building. Mass was 6.2 million pounds or 2.81 million kilograms. Launch capacity was, थोड़ा सा zoom कर देता हूँ, 130 US ton or 118 tons payload to Earth orbit, or 50 US ton, that is 43.5 tons payload in lunar orbit. Okay. The Saturn V has the biggest and most powerful rocket engines ever built. It has more than 3 million parts, making up nearly 7 क्या है ये, 7 million नहीं है ना, सॉरी 0.7 million, 700,000 बोलते हो, 700,000 components, and uses a total of 88 engines and motors to reach the moon and return the astronaut safely home. कितना, 88 engines and motors, wow. The first stage engine produces a combined 7.6 million pounds or 3.4 million kilograms of thrust, burning approximately 20 US ton or 13 tons of fuel per second. भाई इतना वो पाउंड्स नहीं, वो डिवाइड नहीं है वो, या तो और फिर है, वो तुमको और है, मिलियन। हाँ और यस यस और ही बोला एग्जैक्टली। मैंने। हाँ तो ठीक है। हाँ, सो दिस इज स्टेज 1 सी और स्टेज 2 इंटर स्टेज। ओके, यहाँ पे सेपरेशन है हम्म, आई गेस, राइट। नहीं एक्चुअली हाँ फर्स्ट स्टेज में देखो ना, नीचे है वो। ओके, यहाँ से शुरू करते हैं। नहीं नहीं नहीं, लॉन्च, पीछे से स्टेज वन से, स्टेज वन अच्छा देन। सॉरी, स्टेज 1 यहाँ पे, हाँ ठीक है, मुझे लगा स्टेज 1 वहाँ पे, ठीक है। स्टेज, भाई लारे ऊपर से कैसे लॉन्च करेगा तोड़ना शुरू नहीं करेगा। नहीं, मैंने देखा स्टेज 1, मैंने देखा नहीं अच्छा, वो। नहीं उसका उसका डिब्री पूरा पीछे पड़ेगा ना, सब पे हाँ हाँ, गिरेगा। फर्स्ट स्टेज S1, हम्म, 5 F1 rockets, rocket engines used 204,000 gallons or 772,224 liters of rocket propellant 1, that is space grade kerosene, and 318,000 gallons or 1.2 million liters of L0X liquid oxygen, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा फ्यूल यूज़ कर किया था उस टाइम पे, मतलब दैट इज़ ऑब्वियसली मोस्ट पावरफुल इंजन अगर है। भाई बहुत वही तो सर ने बताया ना, ऊपर वो लिखा तो है वहाँ पे टन्स ऑफ कितना फ्यूल्स, फ्यूल। यस। 88 मिलियन समथिंग समथिंग क्या था वो। Second stage, say हम्म, 2. 5 J2 rocket engines used 260,000 gallons or 98, अच्छा sorry, 984,207 liters of LH2 liquid hydrogen, लिक्विड हाइड्रोजन ये लिक्विड और ऑक्सीजन इतना। था, ये लिक्विड हाइड्रोजन है, हम्म, एंड 80,000 gallons or 302,832 liters of LOX liquid oxygen, लिक्विड ऑक्सीजन यस। liquid oxygen. Third stage, SIVB, one J2 rocket engine used 66,700 gallons or 252,486 liters of LH2, that is liquid hydrogen again, and 19,359 gallons or 73,281 liters of liquid oxygen. An Olympic sized swimming pool holds 660,253 gallons or 2 बाप रे, liters of water. मतलब अर्थ का 1% रिसोर्स लेके गया है ये, हाँ, मैं लेकिन बोल रहा हूँ। एक टाइम पे एक टाइम में हो गया आउट सीधा। ठीक है। लूनर मॉड्यूल, LM, ये लैंड होने वाला है ना, हम्म, लूनर मॉड्यूल। LM एडेप्टर, ओके। कमांड मॉड्यूल, कमांड वॉल्यूम लॉन्च सर्विस एस्केप मॉड्यूल यहाँ बस। पे है बीच में। लॉन्च एस्केप सिस्टम, so this is how total Saturn V launch vehicle is designed. Okay, very very powerful, too much fuel consumption, but ठीक है, वो तो required है ही, because that time we had to go to moon, तो ठीक है, it's a good lunar mission profile. लॉन्च किया, देन अर्थ का ऑर्बिट यूज़ किया है ना ये, हाँ हाँ हाँ, देन सेपरेशन सेपरेशन सेपरेशन, सेपरेशन सेपरेशन फिर और फिर अर्थ का वापस ऑर्बिट एक और बार, ऑर्बिट लिया यस। देन हाँ इट गोज टू मून, डिप्लॉय। लैंड हुआ, हम्म लैंडिंग मतलब डिस्टेंस चालू किया, लैंड हुआ, देन वहाँ से
मून से टेक ऑफ किया। ऊपर गया, टेक ऑफ किया, यहाँ पे आया, अटैच हुआ, यहाँ पे अटैच हुआ ना, यस यस, उस पर अटैच हुआ एंड उसकी तरफ। ये मून को ऑर्बिट करके रिटर्न अर्थ की तरफ आया एंड सिर्फ लैंडिंग कैप जो है वो क्या बोलते हैं, सी में लैंड हुआ, दैट्स इट। फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री, वी लॉन्च वेलोसिटी लॉन्च, ये ठीक है। अगर ये स्पीड से लॉन्च करेंगे तो लॉन्च करके वी एक्सेलरेशन वापस यहाँ पे, ओके। यस। So lunar orbit is like this, free return trajectory. बट अगर थोड़ा सा इधर यहाँ पे आके आई डोंट नो, शायद लेक्चर से ही सुना है या कहीं से सुना है, यहाँ आके दे हैव टू फायर इन अ रिवर्स डायरेक्शन, राइट, अदरवाइज वो एक्सेलरेशन नहीं होगा, या ऐसा कुछ तो रुक है। जाओ, आगे है, आगे है, आगे है, है ना, ओके। आगे है, आगे है, आई एम श्योर आगे है। करंट एरा experience gained from the Salyut missions went on to pave the way for multi-modular space stations such as MIR 1986 to 2001 and the International Space Station. Of MIR, the Soviet Union was dissolved in 1991, yes, because उनके कांड की वजह से। The shuttle MIR program was established between the Russian Federation and the United States in 1993. The former adversaries would now cooperate, with Phase 1 consisting of joint missions and flights of the US Space Shuttle to the MIR space station, Phase 2 of the Shuttle MIR program that would lead to the International Space Station. Okay. The ISS serves as a microgravity and space environment research laboratory in which crew members conduct experiments in biology, human biology, space medicine, physical science, मटेरियल साइंस, स्पेस वेदर, एस्ट्रोनॉमी, सब कुछ लिख दो ना वहीं पे जितना बाकी है ह्यूमैनिटी के व्हाटएवर सारे फील्ड्स। व्हाटएवर इज रिलेटेड टू स्पेस वो सब कंडक्ट कर रहे हैं उधर। हाँ, ऑब्वियसली जस्ट पड़ेगा। बस न्यूक्लियर वाला नहीं डाल रहे वहाँ पे। हाँ, न्यूक्लियर तो उन्होंने वो उसमें भेज दिया ना, वो भेज ही दिया ना, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है ना। क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, वॉयजर्स में। वॉयजर्स में, यस। Other rockets. Titan rockets found wide use in launching unmanned payloads. Upgraded version of Titans lofted heavy satellites into Earth orbit and propelled important spacecraft to other planets. Viking missions and Voyager missions. ये देखो आ गया. Canadian designed sounding rockets has been flying since 1961 and successfully completed over 800 flights carrying small payloads such as cameras, instruments, and microgravity experiments. Its cost-effective approach helps perform specific scientific experiments during its suborbital flight. Okay. तो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स लॉन्च करने के लिए कैनेडियन साउंड रॉकेट्स यूज करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट इज दिस? डोर ओपन्स ऑन पेलोड de-spines and leaves rocket. अच्छा, स्पाइन स्पिन्स। de-spins, हाँ, de-spins and leaves rocket, ठीक है। Sun or distant stars used for orientation. Wow, good idea. And received. Okay, ground station है. Doors close on payload and payload recovered and used again. Okay. Yeah. So मतलब छोटे से टाइम के लिए वो लॉन्च था एंड डेटा जो भी। आई थिंक ये वो टाइम गैप जो है ऐसा 10 मिनट ऐसा नहीं है, कुड बी लाइक 1 मंथ और समथिंग। हाँ हाँ हाँ, फिर उस तरह से बोल रिकवर कर सकते रहे हो हैं। सेफर साइड। हाँ हाँ। अदर रॉकेट्स, अरे ये तो अभी पढ़ा है ना, टाइटन रॉकेट्स अभी पढ़ा ना, कौन आया? एक सेकेंड ना, तुम लोग पढ़ो, मैं आया। ओके, ये दोनों तो अभी हुआ ना जस्ट। आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड. The launch of the first sounding rocket from Thumba on 21st November 1963 marked the beginning of Indian space program. Though the first rockets were imported from Russia and France, ISRO started launching indigenous made sounding rockets from 1965. Okay. The space shuttle was the new concept for carrying crews and payloads into low Earth orbit. It consisted of a central external tank surrounded by two solid rocket boosters and a wing orbiter. ठीक है, बेसिकली ये हिस्ट्री है। आई मीन इसको तो
पढ़ के ही याद करना पड़ेगा। दिस इज ना, मैं वो बोल रहा हूँ अनिकेत, हाँ वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर, उसके आगे वो स्लाइड आनी चाहिए थी। हाँ हाँ हाँ, उसके आगे आना चाहिए था, यस। बीच में कहाँ से सर ने मून का डाल दिया है। चल ठीक है, कोई बात नहीं। लिफ्ट हाँ। ऑफ हुआ, एसआरबी सेपरेशन हुआ, ठीक है। हम्म। इंजन कट ऑफ, ईटी सेपरेशन, ऑर्बिट इंसर्शन, ऑर्बिट में इंसर्ट कर दिया, ऑन ऑर्बिट ऑपरेशंस, डी ऑर्बिट वापस से री एंट्री, वापस से लैंड। गुड आइडिया ना। नहीं, आपने वो देखे रहेंगे ना जिम्नास्टिक वाले वीडियोस, वो मतलब एथलीट भाग के आता है, देन वो स्पिन करता है, एंड देन ही लैंड स्ट्रेट। हाँ 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 ये वही लग रहा हाँ है। रॉकेट जंप किया, हाँ, उन्होंने लॉन्च किया, स्पिन किया उसने, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए, देन वापस से स्पिन कम किया किया। एंड ले रिटर्न। लोग तालियां बजाएंगे। ओके, Yeah. फिर इमेजेस ऑफ स्पेस एक्स, ठीक है, ये तो लेजेंडरी इमेज है, ये तो सबको पता। कैचिंग इट बैक, इज इट इजी टू गो टू स्पेस? नो, ऑफ कोर्स इट कॉस्ट 1000 rupees per gram of weight to put in space, so weight is limited. It must fit in a rocket, so volume is limited. A rocket can carry only 3 to 4% mass of a payload, बाकी सब उसका खुद का ही रहता है। It must rely on solar cells, so power is limited. Launch itself is very violent, yes. It takes the sun directly, so it gets heated, of course. It faces intense radiation environment, yes. Satellites cannot be repaired. Yet, a good satellite is an enormously powerful tool. Correct. मतलब टू मेनी कॉन स्टिल प्रॉफिटेबल, ऐसा बेनिफिशियल ऐसा हो Basically, you गया। have to go against all odds. हम्म। Soyuz. A Soyuz spacecraft consists of 3 parts from front to back. यहाँ से यहाँ दिया है अभी, ठीक है। A spheroid orbital module which provides accommodation for the crew during their mission. Second is a small aerodynamic re-entry module which returns the crew to Earth. Third, a cylindrical service module with solar panels attached which contains the instrument and engines. Soyuz can carry up to 3 crew members and provide life support for about 30% days. Okay. The life support system provides a nitrogen oxygen atmosphere at sea level partial pressures. The atmosphere is regenerated through KO2. What is KO2? Potassium कुछ होना चाहिए ना? CO2 ना, पोटेशियम ऑक्साइड। Potassium oxide cylinders, which absorbs most of CO2 and water produced by the crew and regenerates the oxygen. And lithium oxygen hydrogen cylinders, अच्छा lithium oxygen hydrogen ना, ये इसको कुछ तो नाम होगा, I don't remember, ठीक है। Oxygen cylinder, lithium hydrogen oxygen hydrogen cylinders which absorbs leftover CO2s. Okay. नहीं, K2O हो रहता है पोटेशियम ऑक्साइड। आई डोंट नो KO2 क्या होता है। What is KO2? देख लेते सुपर ऑक्साइड हैं। पोटेशियम वो सुपर क्या है? ऑक्साइड होता है वो। LiOH क्या है? नहीं, LiOH नहीं, आप K वाला बोल रहे थे ना, लिथियम हाइड्रोक्साइड। नहीं लिथियम वो ठीक है, हाइड्रोक्साइड। वो तो आपने बता दिया ना। नहीं, K2O इज पोटेशियम ऑक्साइड, वो KO2 KO2 इज सुपर ऑक्साइड, मतलब पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड। ओके। नहीं, इसमें जो बोल रहा है चैट में, क्या बोल आपका AI जो बोल रहा है K2O बता रहा है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो अच्छा, ओके। विकी पे, ऐसे नीचे जा, विकी का आ रहा पेज। हाँ, दिस वन, KO2 अच्छा, सुपर सुपर ऑक्साइड। ओके। और नेवर रिलाई ऑन लाइक AI इतना जल्दी। LiOH इज लिथियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम। लिथियम हाइड्रोक्साइड CO2 एब्जॉर्ब कर रहा है। ये क्या बोला आपने? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड, या ये भी क्या, ये भी तो वही कर रहा है, रीजनरेट। अच्छा, एटमॉस्फेयर रीजनरेट कर रहा है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड से, which absorbs the most of CO2 and water produced by the crew and regenerates the oxygen. And lithium क्या था वो, क्या पढ़ा मैंने? लिथियम हाइड्रोक्साइड। Lithium hydroxide cylinders which absorbs leftover CO2s. Okay, it's a good design. Soyuz rocket scientist during early 18th century. Newton, as always, हमेशा हर जगह उसको आना ही था। भाई उस टाइम पे फिजिक्स अर्ली स्टेजेस पे था ना, उतना स्पेशलाइज नहीं होता, तो आप जो भी डिस्कवर करोगे आप दूसरे टॉपिक पे भी लेके जा सकते हो उसको। हाँ,
Newton organized his understanding of physical motion into 3 scientific laws. Newton's laws soon began to have a practical impact on design of rockets. ये क्या है? सिल्कोस्की. हाँ T तो साइलेंट होगा ऑफ कोर्स. या Tsiolkovsky, 1857 to 1935, systematically studied the theory of motion of jet apparatus, forming a rigorous theory of jet propulsion. He was also the first to speculate on the possibility of manned outer space exploration with rocket technology. शायद ये नाम पूछ सकते हैं, ये नाम याद रखना. Tsiolkovsky calculated that the horizontal speed required for a minimal orbit around the Earth is approximately 8 kilometers per second. 8 8 kilometers per kilometer per second. second, हाँ. हाँ. And that this could be achieved by means of a rocket. He convinced a number of ideas that have been later used in rockets, like liquid hydrogen, liquid oxygen, and propellants, rocket steering thrusters, multi-stage boosters, space stations, airlocks, etc. हाँ, ये सारी चीजें कितना एस्केप वेलोसिटी है बट 11.2 ना कुछ 11.2, हाँ. हाँ हाँ, नहीं, उसको ऑर्बिट में रखना है ना, हाँ एस्केप नहीं करना है, ऑर्बिट में रखना है. अच्छा अच्छा रॉबर्ट गॉडार्ट, ये भी नाम पढ़ा है, सुना है मैंने और कहीं भी. हम्म, 1882 to 1945, built and flew world's first liquid propellant rocket in 1920. He is considered as father of modern rocketry. He also developed gyroscope based control system. Okay, ये नाम भी याद रखो. ओबर्थ 1894 to 1989. Oh, काफी जी गया बंदा. बहुत जी लिया. Was 95. Was a German. कुछ लोग हैं अभी इनको नहीं रहना चाहिए बट ठीक है. Was a German scientist devoted his life to promote space travel. He popularized rocketry by proposing practical rocket designs for amateurs. Okay. Basic principle: the only known way to meet space flight velocity requirement is through the use of rocket. Rocket thrust is the reaction force produced by expelling particles at high velocity from nozzle opening. Without material to expel, no thrust can be produced, regardless of how much energy is available. जब तक thrust से without material बाहर ही नहीं आएगा तो कैसे ही acceleration मिलेगा. Rocket engines are distinguished by the type of mechanism used to produce exhaust material. Balloon experiment, yes, ये सर ने बताया था. Burn, uncontrolled motion or controlled motion. Basic fireworks. What would happen if we double the fuel? What would happen if we tie up 5 rockets together? What would happen if we tie a rocket on top of each other and connecting the fuse serially? Okay, serial fuse यानी वही क्या बोलते हैं उसका एक्सप्लोजिव शायद. राइट. सो हाई प्रेशर लो प्रेशर इज देयर, इसके लिए प्रोपेल हो रहा है, जेट फ्लो आ रहा है. ओके, ये क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे ना. what will happen if you double the fuel? वेट बढ़ जाएगा तो लिफ्ट कर पाएगा क्या खुद को? लेट्स आस्क चैट जीपीटी. करना है कि पहले खुद थोड़ा दिमाग लगाना है? खुद से दिमाग लगाओ ना, क्यों चैट जीपीटी को परेशान कर वी रहे आर हो? ऑलमोस्ट हाफ वे. व्हाट वुड हैपन इफ वी डबल द फ्यूल? अगर फ्यूल डबल करेंगे तो ऑब्वियसली पेलोड का भी तो वेट बढ़ेगा. हाँ वही तो बोल रहा हूँ, पेलोड बढ़ गया तो आपका इट वोंट बी, इट कर नहीं पाएगा, लिफ्ट नहीं कर पाएगा. हाँ, इट वोंट गो एज हाई एज पॉसिबल शायद. हाँ, लिफ्ट ऑफ ही पहली बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपका लिफ्ट ऑफ के टाइम तक ही आपका 25% कुछ हाँ मेरे हिसाब से यूज हो जाता है. 25 उसका था. अपना जो स्पेसशिप है, नॉट स्पेसशिप, एरोप्लेन रहते हैं ना, हाँ तो वो लोग जब फ्यूल भरते हैं देन जो फर्स्ट तो 25% ऑफ द फ्यूल गेट्स यस लिफ्ट ऑफ के टाइम. बाद में वो ग्लाइड करना है वो सब में तब यूज होता है. बट नॉर्मल एरोप्लेन्स ना अपने वाले, नॉर्मल एरोप्लेन्स का, रॉकेट्स का तो उनको पता है आई थिंक, क्योंकि जितना मुझे पता है सिर्फ अर्थ से निकलने के लिए आप 80% फ्यूल बर्बाद कर देते हो, जस्ट अर्थ से निकलने के लिए ग्रेविटी से. let's assume 3 answers, then we will ask ChatGPT. आई डोंट थिंक सो, नहीं होगा. What would happen if we double the fuel? लिफ्ट ऑफ में ही प्रॉब्लम होगा. I also यस बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा. What इफ यू would टाई happen if फाइट we tie नहीं हो भाई, नहीं होगा. अगर 5 रॉकेट्स टाई करेंगे तो लेकिन उनका थ्रस्ट, उनका सबको अगर जलाओगे तो आप सब लोग अपने सेम हाइट पे ही पहुंचेंगे और कुछ नहीं होगा. और उसका किस तरह से टाई अप कर रहे हो? हॉरिजॉन्टली सबको कर रहे हो कि वर्टिकली एक के ऊपर एक कैसे कर रहे हो? साइड बाय साइड है और साइड तो ये वर्टिकली है. हाँ ओके. अगर साइड बाय साइड किया तो अगर सबका एग्जॉस्ट एक टाइम पे यूज हुआ तो मे बी लिफ्ट ऑफ होगा. लिफ्ट ऑफ सबका हो जाएगा. इंडिविजुअली वन रॉकेट कैन लिफ्ट इटसेल्फ, राइट? हाँ,
और सबको आपने ऑन कर दिया तो सब एक साथ उड़ के ऊपर जाएंगे, जैसे रहता है ना लेकिन आपका वो डिजायर्ड हाइट शायद फिर भी नहीं हाँ पहुंच पाएंगे. डिजायर हाइट तो नहीं, सबका नॉर्मल हाइट ही पहुंच जाएंगे। What would happen if we tie a rocket on top of each other and connecting the fuse serially? मतलब एक रॉकेट ऐसा है, उसका फ्यूल यूज हुआ, हाँ देन दूसरे का, नहीं हो पाएगा, नहीं हो इससे तो पाएगा। लिफ्ट ऑफ ही नहीं होगा शायद. हाँ इसमें तो थर्ड में लिफ्ट ऑफ ही पॉसिबल नहीं है। Now let's ask our. उसको पहले बताओ, रुको रुको रुको, उसको पेस्ट पेस्ट करो और फिर लिखो, पहले लिखो वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिक व्हाट डू यू से फायरवर्क रॉकेट्स, व्हाट विल हैपन, ऐसे लिखो। हाँ ऊपर टॉप फर्स्ट के अरे अरे यार उसने, ठीक है चलो. How thrust mass and burn time. Okay. What if we double the fuel? More fuel, longer burn time, not necessarily more of force. Yes. Thrust depends on how fuel is burned, not total fuel stored. If you double the fuel, keep same engine, then thrust stays same but time becomes longer. Result, rocket acceleration for a longer time. Final speed increases. Okay, it goes higher farther. Okay, so our assumption is wrong. Mass is नहीं नहीं नहीं, उसने रुको ठीक है, उसने वो सब किया है ना कि सब इंजन सेम रखा है, थ्रस्ट से सेम बर्न टाइम। अरे ऐसा नहीं है ना, रॉकेट आपने क्या किया था फर्स्ट वाले में, फर्स्ट इक्वेशन क्या था, व्हाट हैव डबल द फ्यूल, ओके सिर्फ डबल द फ्यूल किया है, बाकी सब कुछ same है. ओके ओके हाँ हाँ Mass is हाँ also थर्स्ट higher. थ्रस्ट में इशू आएगा राइट हाँ। मास तो बढ़ेगा क्योंकि एक्स्ट्रा फ्यूल हमने डाला है. हम्म इनिशियल एक्सेलरेशन इज स्लाइटली लोअर, नेट इफेक्ट लॉन्गर फ्लाइट एंड हायर स्पीड इवेंचुअली. ओके, हायर स्पीड बट हायर डिस्टेंस हुआ क्या, होगा ही ना, हायर डिस्टेंस तो होगा ही, हाई इट गोज हायर, इट गोज. ओके ठीक है। व्हाट इफ वी टाई 5 रॉकेट्स टुगेदर साइड बाय साइड? हाँ, दिस इज लाइक पैरेलल रॉकेट्स. व्हाट चेंजेस? थ्रस्ट एड्स अप, 5 रॉकेट्स पुशिंग टुगेदर, मास also increases. Case understanding, if each rocket has thrust T, mass M, then total thrust is 5T and total mass हाँ सेम ही रहेगा यस। acceleration 5. Yes, initially same but important difference, fuel burns 5 times faster, so thrust phase is short but powerful. Real world effect, faster lift off, better against gravity, useful to escape gravity quickly, that's why real rockets use boost. द थिंग इज कि इसने क्या एज्यूम कर रहा है कि हम लोग रॉकेट फेंक रहे हैं ना, तो बीच में मेन रॉकेट है, उसके बाजू वाले बूस्टर्स की बात कर रहे हैं, और हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ आपका दिवाली रॉकेट है जिसमें कुछ मेन बॉडी नहीं है, हम लोग सिर्फ बूस्टर बूस्टर खेल रहे हैं। हाँ. समझा आपको? हाँ, इसको ठीक है, पूछते हैं वापस से बाद में. Rocket stacked vertically, serial firing. This is a multi-stage rocket like space. Bottom rocket fires first. When fuel ends, it detaches. Then second rocket fires. ठीक है. Why is this powerful? Early each stage burn fuel, then drops dead weight. ये तो नहीं. ये सोहन सो गया क्या, कुछ बोल नहीं रहा? Rockets keep becoming lighter, but still has nonsense. Acceleration keeps improving stage by stage. Very high final velocity. Real example. Okay. उसको ये बोलूँ क्या? What if? Answer all these. Again, considering not real rockets. अच्छा डूइंग सम वर्क, ओके ओके। Really rockets. Chemical powder inside burns and produces thrust pusher. Rocket becomes heavier. It burns for longer time. Initially heavier, slower start, then burns longer, keeps pushing up, goes higher. Okay, but not double. If too heavy, may even fail. या वही हम लोग बोलते हैं ना, फेल टू लिफ्ट प्रॉपर्ली, वही हो रहा है। Real observation, sometimes overloaded rockets go slow or tilt or behave unpredictably. हाँ, किसी के भी घर Yeah. जाते हैं ना वो rockets. या ये वो वाले rockets हैं. What if you tie 5 rockets side by side? Like tying 5 Diwali rockets. Thrust है, mass बढ़ गया. If perfectly balanced, goes up strongly and fast, more powerful lift off than single rocket. But in real Diwali rockets, hard to align perfectly, slight angle differences, unstable motion. Final results can go higher and faster, but risky. May spin, may go sideways. You have probably seen rockets going zigzag. That's why. Okay. What if we stack rockets vertically, one above, and fuse in series? This means first rocket fires, then its flame lights the second, then third, like the chain reaction. Stage 1, first rocket lifts everything, heavy load. Then second rocket ignites at height. Now system is lighter. First fuel mostly used. Then third rocket even lighter. Final,
This is actually the most powerful setup. Each stage pushes further. Rocket keeps gaining height step by step. हम्म, This Diwali style effect, you will see rocket goes up, suddenly boosts again mid-air, goes even higher. Okay, so this is what will happen. ठीक है. Smart staging is basically one above each other. हम्म, Best height gain. ठीक है. So this is the good idea, third one. Okay, how to produce a firework like this? ये वाला. हम्म। कुछ सर ने बताया था. ठीक है, देखते हैं क्या है. 2 स्टेज रॉकेट्स है ना वो, बेसिकली पहला लिफ्ट ऑफ होता है, सेकंड फिर ब्लास्ट होता है। ये क्या है? स्टोनशियम, बेरिलियम. हाँ, मतलब कौन जो हाँ, कलर्स एलिमेंट, कलर्स. हाँ जो जल रहा है ना, उससे कलर से यू कैन टेल कि एलिमेंट क्या था उसके हाँ, अंदर। लिथियम, सोडियम, हाँ, कॉपर, कैल्शियम. कैल्शियम। Okay. Components of rockets. There are four major components to any full-scale rockets: structural system of frame, the propulsion system, the guidance system, the payload system. Okay. Propellants. The most common rocket engines is the chemical type in which hot exhaust gases are produced by chemical combustions. The chemicals are or propellants are of two types: fuel and oxidizers, corresponding to petrol and oxygen in automobile engine. Both are required to combustion for combustion. They may be solid or liquid chemicals. ठीक है. In other types of rockets, no chemical changes takes place within the engine, but the working fluid may be converted to a hot gas for ejection by the addition of heat from a nuclear reactor or some other energy sources. ये देखेंगे तो समझ जाएगा. Solid rocket propellants are prepared as a mixture of fuel and oxidizing components called grain, and the propellant storage casing effectively becomes the combustion chamber. And liquid fueled rockets force separate fuel and oxidizers components into a combustion chamber where they mix and burn. ये मुझे याद है थोड़ा थोड़ा सा. सो फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर है, दोनों है साथ में आते हैं, एंड यहाँ पे बर्न होके इसके लिए वो थ्रस्ट मिलता है, बिकॉज ऑक्सीजन भी या बर्न होने के लिए. वो लिक्विड वाले का है कि लाइक उनको आप कर सकते हो लिक्विड इजीली रॉकेट्स, हाँ. ट्रांसफर यहाँ से वहाँ। एंड सॉलिड वाले रॉकेट्स में इग्नाइटर है flame। उनको बेसिकली सिलेंडर जो होता है रॉकेट का, उसको अंदर की तरफ से बेसिकली पूरा फ्यूल रहता है, वो या यहाँ से चालू होता है इग्नाइटर. अभी इसमें था कि जहाँ तक मैंने पढ़ा था लिक्विड वाला में यू कैन टर्न ऑफ इट ऑन एंड ऑफ, बट एक हाँ. सॉलिड वाला में एक बार चालू कर दिया तो इट विल बर्न आउट पूरा। हाँ, और उसका एरिया बढ़ते जाता है, मतलब जैसे अंदर हाँ हाँ शेल कम फ्यूल होगा, फिर बाहर हाँ, यस यस, वो आगे ही है। ड्रॉ शायद, तो ऐसा कुछ है वो. अगर हाँ वो आगे है सर। अच्छा है क्या? यस यस, आई शुड नॉट ड्रॉ इट देन. अगर है अच्छी बात है. कैंसिल. यही है नेक्स्ट पे। ग्रेन परफोरेशन एंड प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव बर्निंग. ओके, अगर ये फुल है डायरेक्टली यहाँ से बर्न होना चालू होगा ना, या पूरा का पूरा बर्न हो जाएगा एक साथ। अगर सेंटर में हॉलो है तो बर्निंग होना चालू होगा. देन अगर ये शेप यूज़ किया तो क्या होगा, अलग अलग टाइप्स यूज़ करके उन्होंने देखी. हाँ, तो कैसा थ्रस्ट मिलेगा ओवर द टाइम पीरियड वैसा है। हाँ. एंड प्रोग्रेसिव, सेंटर में हॉलो है, साइड में उन्होंने फ्यूल ट्यूबुलर फॉर्म में सेव किया, स्टोर किया हुआ है. रॉड एंड ट्यूब भी करके देखा है, डबल एंकर्स भी करके देखा है. ये शेप्स है ना बेसिकली करेक्ट स्टोर करने के. एंड ये थ्रस्टर के लिए है ना, स्टार पैटर्न जो नीचे जहाँ से थ्रस्ट आएगा नीचे बाहर. एक्चुअली वो जो है वो सब थ्रस्ट के लिए ही है सबके साथ। वो जो एंकर डबल एंकर था ना बोल रहे थे, वो सब भी सेम ही है, मतलब बस पर्पस सेम है बट डिजाइन अलग है। हाँ. एंड ये सिल्वर कोटिंग किया हुआ है क्या? हाँ हाँ, वो लास्ट कोटिंग रहेगा। सॉरी स्लाइवर है. गलत. हाँ स्लीवर, ओके। ठीक है. तो सरफेस एरिया उसको सेम मिलेगा एंड में, मतलब बाकी सब डिजाइन का इशू क्या हो रहा था कि लाइक स्टेबल नहीं मिला था ना आपको थ्रस्ट। हाँ, उन्होंने तो वो डिजाइन से शेप सारे आपको, यूज करके हाँ देखे. यस, वो भी है. चलो नेक्स्ट. हाँ ये इसे मैं पढ़ा था। सॉलिड रॉकेट्स क्या है? इग्नाइटेबल सेल्फ सस्टेनिंग सॉलिड फ्यूल ऑक्सीडाइज मिक्सचर ग्रेन विद सेंट्रल होल एंड नोजल. हाँ, वो नोजल का शेप्स है. या सिंपल ऑफन नो मूविंग पार्ट्स, रीजनेबली गुड मास फ्रैक्शन, रीजनेबल ISP,
schedule can be designed into the grain. Cons, throttling, burn termination and reignition. बीच में अगर उसको स्टॉप करना है और वापस से रीइग्नाइट करना है तो प्रॉब्लम. Yes. Lower perforation than liquid rocket. परफोरेशन नहीं, परफॉर्मेंस देन परफॉर्मेंस लिक्विड. की क्या है पक्का? परफॉर्मेंस से मेरे ख्याल से. परफोरेशन भी हो सकता है. अच्छा, परफोरेशन भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, करेक्ट. Lower perforation than liquid rockets. Refilling is harder. Yes. Liquid propellant rockets. Two fluids, typically liquid. Propellants are introduced through injectors into combustion chamber and burned. Liquid oxygen and hydrogen. ये अभी देखा ना थोड़ी देर पहले. यहाँ पे. ऊपर वाले में. It is यस. that. और केरोसिन प्लस ऑक्सीजन. ठीक है. Pros: up to 99% combustion with excellent mixture control. Throttleable, can be used with pumps, which permits incredibly lightweight tanks. And cons क्या है? Pumps are expensive. Yes. Failure can lead to major explosion. Major plumbing required. हाँ, fuel pumps. भाई अभी वो क्या है? लीकेज डिटेक्ट करने में टाइम लग गया था ना, 1 महीने का. 1 महीने नहीं, कुछ आर्टेमिस का डिले क्यों हुआ था? हाँ. क्योंकि लीक हो रहा था ना वो फ्यूल. अरे वो लेवल छोड़ो, जिन्होंने गाड़ी भी यूज बट की. फ्यूल पंप्स डेंजर चीज है. या बहुत डेंजर है. कैसा अभी लीक उसमें हुआ ना, तो इट टेक भागो भागो भागो. या इट टेक्स टाइम टू रिपेयर. Monopropellant rockets. When this liquid is passed, description. When this liquid is passed through a platinum catalyst mesh, it decomposes into hot steam and oxygen and develop thrust. Hydrazine. Okay. Pros क्या है? Simplest to control. Requires only one tank in the vehicle. 2 chambers की जरूरत नहीं है. Cons, comparatively low specific impulse. इम्पल्स. Okay. यानी उसका वो जो impulse जो नीचे है, नीचे पूरा इम्पल्स के बारे में है, अभी नहीं है. ऑर्बिट में आगे. देते हैं बेसिकली. दैट इज इम्पल्स. Air augmented rockets. Essentially, a ramjet where intake air is compressed and burnt with the exhaust from a rocket. Pros is good efficiency at Mach 2 or 4. Cons is relatively undeveloped, cooling difficulties and noisy. बहुत आवाज है. ठीक है. Specific impulse. The most important metric for the efficiency of a rocket engine is total change in momentum per unit of propellant. This is called specific impulse, usually written ISP. Okay. A propulsion system with a higher specific impulse uses the mass of the propellant more efficiently in creating forward thrust. Rocket, propellant और and ISP दिया. Space shuttle liquid engine, liquid oxygen and liquid hydrogen. Right. 453 ISP है. स्पेस शटल सॉलिड मोटर्स. APCP क्या है मुझे भी नहीं पता है. APCP. चलो देखते हैं. 268 ISP है. स्पेस शटल OMS नाइट्रोजन होगा कुछ. नाइट्रोजन एंड MMH वॉट. 313 ISP. सैटर्न V स्टेज 1 ये हमने देखा था थोड़ी देर पहले. लिक्विड ऑक्सीजन एंड RP1 वॉट, दैट इज 304 ISP. सो liquid oxygen and liquid hydrogen should be the best, right? उसका ISP अच्छा है. Equal to ISP into mg0. What is this? To get more thrust, one can either increase the ISP, make the engine more efficient, or increase the mass flow rate. Okay. Burn more fuel per second. Okay. Mass of a fuel होना चाहिए ना ये per second. And gravity is G0, वो तो है उसके अगेंस्ट. Launch vehicles require extremely high thrust to overcome gravity and atmospheric drag during liftoff. For this reason, they often use chemical rockets with moderate efficiency. Deep space probes. Once in orbit, engines with high specific impulse are preferred. They should burn a very small mass to produce thrust, even if small, in order to run for more months or years, eventually reaching much higher speeds than chemical rockets. तो मतलब उसको इम्पल्स ज़्यादा चाहिए. D लेवल नोजल. हाँ ये भी मुझे याद है. ये अलग अलग शेप्स यूज़ किए उन्होंने, ट्राई किए. किससे थ्रस्ट ज़्यादा मिलेगा? हाँ किससे थ्रस्ट ज़्यादा मिल रहा है, कौन से शेप से. The hot gas produced in the combustion chamber is permitted to escape through an opening, the throat, and then through a diverging expansion section. When sufficient pressure is provided to the nozzle, about 2.5 to 3 times ambient pressure, the nozzle chokes
and a supersonic jet is formed, dramatically accelerating the gas, converting most of the thermal energy into kinetic energy. तो speed बढ़ रहा है, thrust. Rocket engine's thrust comes from the unbalanced pressure inside the combustion chamber, and the rest comes from the pressure acting against the inside of the nozzle. इसके against जो pressure. As exit pressure varies from the atmospheric pressure, a choked nozzle is said to be under expanded, exit pressure greater than ambient, perfectly expanded, exit pressure equals ambient, over expanded, exit pressure less than ambient, और grossly over expanded. तो अंडर एक्सपांडेड होगा तो ही तो ज़्यादा ये करेगा ना. आई मीन आई डोंट नो इसमें से कौन सा बेटर परफॉर्म करेगा. बैलेंस्ड में नहीं बैलेंस कैसा करेगा. प्रेशर ग्रेटर होगा तो ही तो लिफ्ट ऑफ ज़्यादा करेगा ना. लेट्स सी. ठीक है, देखो. पर माई लॉजिक. ठीक है, देखते हैं आगे. मैन्यूवरिंग. रॉकेट propulsion is used for various space flight maneuvers and vehicle accelerations. First stage and its upper stage add momentum during launch and ascent. Orbit injection and orbit transfer required accurately determine total impulses. Velocity vector adjustments, re-entry and landing maneuvers, rendezvous and docking, change of plane of flight trajectory, अगर trajectory change करना है तो yes, simple rotational maneuvers, वो 180 डिग्री जो रोटेटिंग मैंने बोला ना, deorbiting and disposal of used spacecraft. Humans have to leave something behind. Emergency missions. So ये सब maneuvering में आता है. Okay. The guidance system. It has two main roles during the launch of a rocket: to provide stability for the rocket and to control the rocket during maneuvers. Okay. So what is this? सेंट्रल मास है, सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ प्रेशर है, फोर्स. तो किस तरह से गाइड करने वाले हैं? या तो आपको फिन्स को आप मूवेबल बना सकते हो, हाँ, ऐसे थ्रस्ट अगर को मूव किया तो क्या गिम्बल होगा. में डाल सकते हो. यस. ये यहाँ डालेंगे तो या थ्रस्ट वेन. ठीक है. मैन्यूवरिंग. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ मैन्यूवरिंग दैट द स्पेसक्राफ्ट परफॉर्म्स: ट्रांसलेशन मैन्यूवर्स एंड रोटेशनल मैन्यूवर्स. एक तो वेलोसिटी फॉरवर्ड, अरे एक तो इतना छोटा लिखा है और ठीक है. वेलोसिटी फॉरवर्ड, साइडवेज थ्रस्ट, थ्रस्टर बर्न. वेलोसिटी इज द सम ऑफ द वेक्टर्स, दिस एंड दिस वेक्टर, देन इज टर्न. सो इनिशियली ऊपर वेलोसिटी जा रहा है, देन इट इज टर्निंग, देन इट गेट्स बैक एंड देन इट्स मूविंग बैक. तो मतलब मुझे जो लग रहा है, आई मीन वॉट एवर आई एम गेसिंग, is basically you launch this first, then if you want to go it this way, so पहले इस साइड में लॉन्च, इस साइड में थ्रस्ट देना पड़ेगा टुवर्ड्स दिस, फिर वो रोटेट होना चालू करेगा, देन वो रोटेशन रोकने के लिए वापस से अपोजिट में हाँ परफेक्ट करने के लिए उसको, एंड देन इट विल बी परफेक्टली अलाइंड. ऐसा होगा वो करेक्शन के लिए. मतलब हाँ, अगर बेसिकली ये ऐसा अगर रोटेट थ्रस्ट दे दिया तो बिकॉज ऑफ लेस एयर ड्रैग या नो एयर ड्रैग वो रोटेट करते ही वो रोकने के लिए को अपोजिट में थ्रस्ट देना पड़ेगा. Correct. Side effects. For all but the very smallest sizes, rocket exhaust compared to other engines is generally very noisy. As the hypersonic exhaust mixes with the ambient air, shock waves are formed. The space shuttle generates over 200 decibels of sound of noise around its base. Okay. Such sound levels can also disturb the launch structures. बहुत सारे problems हैं. और वह कॉम्प्लिकेटेड है ना सब कुछ. be reflected back at the comparatively delicate rocket above. This is why so much water is typically used at launches. The water spray changes the acoustic qualities of air and reduces or deflects the sound energy away from the rocket, balancing direction stability. कुछ गैलन्स ऑफ वाटर्स डालते हैं ना जब लॉन्च होना होता है. यस बहुत ज्यादा. वो साउंड वेव्स की वजह से शॉक वेव्स एंड उनको एब्जॉर्ब करने के लिए. हाँ, सॉर्ट ऑफ. अदरवाइज वो उधर ही ब्रेक हो जाएगा लॉन्च पैड पे ही. टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स. ये याद है ये जो किया था हमने. हाँ जियो स्टेशन. क्या जो किया था? जियो लियो मियो. अच्छा. आई डोंट नो किसने किया था बट हुआ था. ये लेक्चर के गैप ब्रेक में हुआ था.
देखने हुआ रहेगा मैं। Geo. Satellites circle Earth above the equator from west to east following Earth's rotation. जियो स्टेशनरी तो पता है राइट, दे आर लाइक फिक्स रहते हैं ना वहाँ पे, हाँ रखते हैं एक हाँ. पॉइंट पे। Taking exactly हम्म, 23 hours and 56 minutes and 4 seconds by traveling at exactly the same rate as Earth. This makes satellites in geo appear to be stationary over a fixed position. In order to perfectly match Earth's rotation, the speed of the geostationary should be about 3 kilometers per second at an altitude of 35,786 kilometers. हम्म, इतने हाइट पे 3 किलोमीटर पर सेकेंड का स्पीड चाहिए, या स्टेशनरी रहेंगे. Low Earth orbit, it is normally at an altitude of less than 1000 kilometer but could be as low as 160 kilometers above Earth. बहुत नीचे है. 160 यानी बहुत ही कम हो गया. यप। Considering the satellite तो बहुत कम है. Most commercial aeroplanes do not वो मैं बोलने आगे वही बोलने आता है कि लाइक भाई altitudes एयरप्लेन कहाँ पे उड़ते हैं फिर। much greater than approximately 14 kilometer. So even the lowest LEO is more than 10 times higher than that. हाँ भाई तो चाहिए, नहीं तो पता चल. यस, और अपनी अपनी लेजर ऑलरेडी इतना पहुंच जाती है प्लेन तक, हाँ, तो ऑब्वियसली। नॉट 4 किलोमीटर, अपना 14 किलोमीटर तक जाता है. हाँ। 10-12 किलोमीटर तक तो जाता ही होगा मिनिमम. हम्म, Medium Earth orbit comprises a wide range of orbits anywhere between LEO and GEO. Okay. Polar orbits and sun synchronous orbit (SSO). This means that that the satellite always visits the same spot at the same local time. For example, passing over Mumbai every day at noon exactly. Okay. हम्म, Transfer orbit and geostationary transfer orbits. Transfer orbits are a special kind of orbit used to get from one orbit to another while using relatively very little energy. Okay. The orbits in between the orbits. Those are हम्म, orbits. Highly elliptical orbits, Molniya orbits, Russia wala. या It has a low dwell time over the hemisphere of interest while moving very quickly over the other. In practice, this places it over either Russia or Canada for the majority of its orbit, providing a constant coverage. It has an orbital period of approximately half a sidereal day. मतलब यहाँ पे उसका ऑर्बिट लंबा कर दिया तो यहाँ पे ज़्यादा रह रहा है, और या तो यहाँ पे कम टाइम के लिए रह रहा है स्पेस में. हाँ, तो उसके लिए उनको ऊपर का जो है ना, ऊपर में ज्यादा टाइम मिलेगा ना सेम लोकेशन के लिए, हाँ, यहाँ पे अगर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करा तो यहाँ पे टाइम ज्यादा रहेगा। के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा उनको. हाँ, करेक्ट. और वो पोलर ऑर्बिट का था, मतलब उसका ऑर्बिट लिटरली पोल्स के थ्रू जाता रहता है वो। हाँ. सो अर्थ, इट्स लाइक अर्थ वो स्टेशनरी हो गया, अर्थ को स्कैन कर रहा है थोड़े थोड़े टाइम में, और अर्थ बिकॉज अर्थ आपका हॉरिजॉन्टली मूव हो रही है राइट, ऐसे स्पिन हो रही है, हाँ हाँ और वो वर्टिकली स्पिन मार रहा है अर्थ को, हाँ. तो वो उसके हिसाब से स्टेशनरी है अर्थ, मतलब सन के पर्सपेक्टिव में अर्थ से घूम रही है, ऐसा रोटेट हो रही है उसके लिए, करेक्ट. वैसा है। हम्म, Rocket equation as per Newton's second law of motion, F1 F2 F3 plus is equal to ये अबे, mass into acceleration ना, हाँ हाँ, m dv upon dt, change in velocity upon change in time, हम्म, that is mv2 minus mv1 upon हम्म, change in time delta p2 minus p1 delta t. p2 p1 क्या है? मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम है. p1 is m plus delta m into v, p2 is m into v plus delta v plus delta m into v minus ve. अच्छा ठीक है, ये भी समझ रहा है कि उसको पूछना है. मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ रहा है हल्का सा, बट v माइनस वी क्यों हुआ वहाँ पे, मैं वो देख रहा हूँ बस। v minus ve ना. हाँ हाँ, क्योंकि देखो ऑलरेडी इमेज आपके नीचे से स्टार्ट हो रही है एक्चुअली, यहाँ से. हाँ, रॉक, हाँ यहाँ पे आपके पास ये मास है, वो वेलोसिटी है. बर्न होने वाला है और निकलने वाला है, हाँ, एंड वेलोसिटी ठीक है। इंक्रीज हो रही है. हाँ, अच्छा वो मास की वेलोसिटी है क्या, कितने से गया निकल गया वो? हाँ, मास जितना कम हुआ उसकी वेलोसिटी होगी. नहीं नहीं, इट्स लाइक मास वो स्पेसशिप से निकल गया, तो हाँ उसकी, एग्जैक्टली. हाँ फ्यूल बर्न करना है ना जितना हाँ उतने हाँ, यस ज्यादा, यस, तो ओके. और वेलोसिटी इंक्रीज ऊपर डेल्टा भी इंक्रीज हो रहा है। हाँ, हाँ, और मास बिकॉज के टाइम में वो उसको डिक्रीज हो रहा है कि
हाँ उसका मोशन अपोजिट साइड है इसीलिए, या मास कि कम वो, हो रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो हाँ P2 में सेकेंड टर्म जो आ रही है ना डेल्टा एम की, ये वाली। हाँ मैं उसका देख रहा हूँ, हाँ कि वहां पे माइनस क्यों किया वो वाला, इज इट की मोशन जा रहा है, बट फिर ऐसा होता तो वी कैपिटल वी शुड हैव बीन आल्सो नेगेटिव। ये ठीक है, मैं पूछते हैं, उसका चलो ट्राई करने का उसको सोच रहा हूँ पूछते हैं। बस। अज्यूमिंग एक्सटर्नल, वो डेल्टा वी ग्राउंड की तरफ आ रहा है ना, सॉरी डेल्टा वी नहीं, वी ग्राउंड की तरफ आ रहा है ना। अच्छा तो वी भी कैपिटल वी भी उधर ग्राउंड की तरफ ही आ रहा है। वी मतलब मेन वेलोसिटी जो फर्स्ट इमेज में अच्छा नीचे वे दिखाई है वी ना। का ऊपर, तो वो नेट के लिए बता रहा है क्या कि वैसे जा रहा है। हाँ, जो ऊपर जाते समय डेल्टा वी इंक्रीज हो रहा है और नीचे आने वाले मास के लिए डेल्टा माइनस वी वी ओके जो गिर रहा ठीक है। है चलेगा। ओके, अज्यूमिंग हम्म। एक्सटर्नल क्योंकि फोर्सेस। डेल्टा एम यानी हमारा, हम मास पकड़ चेंज सकते इन हैं वो। मास जो, हाँ हाँ, वो बर्न ठीक हुआ है। है। चेंज इन मास या फिर रॉकेट के स्टेजेस होते हैं, ये ये पकड़ सकते हैं हाँ हम हाँ इसमें। हाँ हाँ। हाँ, बराबर है। अज्यूमिंग एक्सटर्नल फोर्सेस एंड रॉकेट आर जीरो, जीरो इज इक्वल टू एम वी प्लस डेल्टा वी प्लस डेल्टा इंटू वी माइनस वी माइनस एम प्लस डेल्टा एम वी, यानी जो इनिशियल वैल्यू था हाँ उसका। हाँ। ओके, सो एम डेल्टा वी, अच्छा वन ऑब्वियसली चेंज इन टाइम है। P2 माइनस P1 किया है एंड हाँ, उसे तो सॉल्व माइनस किया वी है। वन सॉल्व किया है। सो एम डेल्टा वी बचा है, क्या क्या माइनस हुआ, वी प्लस वी माइनस वी प्लस वी ई, इतना बचा है, बाकी कुछ ठीक है सॉल्व करना पड़ेगा, वो हो जाएगा। ओके, सो एम डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वी ई अप वी ई डेल्टा एम। ओके, हम्म integrating from initial masses m0 to m1, delta v change in velocity is equals to ve log of m0 अपन m1। तो मास में जो चेंज हुआ उसका लॉग लो। हम्म। ओके, ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझा है। शुड आई आस्क फॉर एक्सप्लेनेशन की आपको ही समझना तो कर लो। देख लेते हैं ना एक बार, हम्म। थोड़ा सा बेटर तो समझ आएगा। माउस खराब हो गया। हाँ माउस यार, खराब हो गया है। क्लिक का प्रॉब्लम हो रहा है। बटन बटन होल्ड करके रखो, हाँ, बहुत जोर से प्रेस करो, हाँ। क्या एक बार अच्छे से एक्सप्लेनेशन ले लिया ना तो अच्छा रहता है, बिकॉज कुछ कन्फ्यूजन ना रहे। और ट्रस्ट में जो अपन ये कर रहे हैं ना पढ़ाई, यही एग्ज़ाम के टाइम पे मुझे कहीं ना कहीं बीच में से याद आता है। क्या बोलते हैं, इक्वेशन सॉल्विंग। हाँ यार, सिवाल्कोस्की को लाइन ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इज टू एम ए, हाँ ये ठीक है। वाई इज रिटन नॉर्मली एम डी वी अपॉन डी टी, बट इन रॉकेट्स मास इज चेंजिंग, फ्यूल बर्न्स, सो वी मस्ट यूज एफ इज इक्वल टू डी एम वी अपॉन डी टी, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, डिस्क्रीट फॉर्म, ओके, स्मॉल टाइम इंटरवल, दिस जस्ट मीन्स फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर टाइम। ठीक है, initial momentum p1 is equals to m plus delta m into v, what why m plus delta m, before fuel burns rocket mass is equal to rocket plus fuel is equals to m plus delta m, velocity is v। अच्छा, रॉकेट का मास प्लस फ्यूल का मास, ठीक है। सो p1 is equal to m into m plus delta m into v, final momentum p2 is equals to this term. Now things get interesting. After a short time, rocket mass becomes m, fuel is burnt, yes, velocity becomes v plus delta v। अच्छा, इस इन्होंने स्मॉल वाला दिया है। ओके, टू पार्ट्स ऑफ मोमेंटम, रॉकेट का ये है, ओके, ये तो वैसे का वैसा आ गया। एग्जॉस्ट गैस डेल्टा एम वी माइनस वी, वाई वी माइनस वी, एग्जॉस्ट गोज बैकवर्ड्स relative to rocket at speed ve, so relative to ground velocity of exhaust is v minus v। अच्छा, what
जस्ट सोहन ने जो बोला वही है, हम्म, एग्जॉस्ट गोज बैकवर्ड, तो उसका हाँ में होगा. या No external force assumption, external force 0. So P2 minus P1 upon delta T is equal to 0. Momentum is conserved. Substitute P1 and P2, expanding everything. अच्छा mv m delta v, ये क्या है, डेल्टा mv डेल्टा m ve माइनस mv एंड डेल्टा m v माइनस. नाउ कैंसिलिंग, क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, mv ये कैंसिल हुआ, कैंसिल mv एंड कैंसिल डेल्टा mv, डेल्टा mv कैंसिल हुआ, डेल्टा mv कैंसिल हुआ, ये ठीक है. mv ये कैंसिल हुआ, ये कहाँ से गया है mv, और एक ओके सोहन जा रहा है, बाय बाय. क्या ठीक बोल रहे हो? है, ये क्या mv कहाँ से कैंसिल हुआ, ये देखो जरा. सामने फर्स्ट टर्म देखो ना यार, अच्छा एमवी सॉरी, हो है. अनिकेत आप सच्ची में पेन लेके कॉपी सॉल्व करो. मेरी नींद आ रही है क्या, मैं आपको नींद देख आ ही नहीं रही पा है? रहा हूँ. हाँ यार सच में, नहीं खत्म हम्म, करना है आज. हम्म, डेल्टा वी माइनस डेल्टा एम, ठीक है. सो ओके, नाउ आई एम गेटिंग इट. रीअरेंजिंग m हम्म, डेल्टा e इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ve डेल्टा m. अच्छा जीरो अगर यहाँ पे, ओके या डेल्टा टी उस उड़ा ईयर पे दिया जीरो हो बिकॉज गया. ऑफ जीरो. हाँ यस. ओके, दिस इज correlation. Okay, important note, delta m is negative, mass decreases, yes, so velocity increases. Convert to differential form, m dv is equals to ve dm, but since mass is decreasing, dm is less than 0, so we can rewrite negative ve dm upon m. Okay, integrate from initial mass m0 to final mass m1. Okay, dm upon m integrate किया, left side delta, right side ये log है ना, हाँ हाँ, m नेचुरल log, लॉग है, एलएन लिख दिया है. हाँ m0 to m1, ठीक है वो बराबर है. फाइनल रिजल्ट ve ln m0 upon m1. ओके, मीनिंग each of term, delta v is total change in velocity, v is exhaust velocity, how fast gases shoot out. Okay, m0 is initial mass, m1 is final mass. Okay, ठीक. Intuition, more fuel, higher m0 upon m1, more speed, faster exhaust, more push, more speed. कनेक्ट टू योर दिवाली लॉकेट, ठीक है ये ज़रूरत नहीं है. ओके, सो वी वो अभी with this, oh escape velocity, let the initial velocity of earth based object be u, kinetic energy equal to half mu square and potential energy is negative gmm upon r. ठीक है, when it reaches height h above earth's surface, its speed becomes v, kinetic energy equals to half of mv square, potential energy is negative gm upon r plus h, so this is radius and ये यस. by conservation of energy, half of m, अच्छा नेगेटिव मतलब काइनेटिक, टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए ना. दोनों एनर्जी शुड बी सेम. हाँ शुड बी सेम, हाँ हाँ. ये दोनों और ये दोनों शुड बी सेम. हाफ ऑफ दिस माइनस दिस, बिकॉज ये है, एंड हाफ ऑफ दिस माइनस दिस. ओके, सो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये टर्म इधर गया है ना, एक मिनट, हाफ ऑफ ये इधर है, ये टर्म इधर हाँ गया है, ये यस टर्म इधर आया. ओके, करेक्ट. सो हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर वैसा ही है, नेगेटिव जी एम एम अपॉन आर, और ये यहाँ पे जाके प्लस हो गया. ओके हाँ. ठीक है. व्हेन द ऑब्जेक्ट रीचेस मैक्सिमम हाइट v becomes 0, फॉर ऑब्जेक्ट टू एस्केप अर्थ v should be positive for all values of h. with very high value of h, the last tends to 0, ये वाला. so half of mu square minus gmm upon r is greater than or equal to 0, or half of mu square is greater than or equal to, अच्छा ये GM by gmm, therefore u is equals to 2 GM by R. 2 gm m, अच्छा m यहाँ का कैंसिल हो गया, 2 gm by r. ओके, कंप्यूट एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ एंड मून. वाओ, अरे ये ज़्यादा सिंपल था यार, किसी एक दूसरे पीपीटी में यही निकाला था हमने एस्केप वेलोसिटी. इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में, बट मैं बोलूंगा इसमें अजम्पशन करने वाला लास्ट पार्ट बहुत गंदा है, बहुत गंदा है लास्ट का अजम्पशन हाँ निकालना. हाँ वहां पे सब कुछ इज्जत से स्टार्ट, क्या होता है ना, क्लासिक फिजिक्स से तुम कर रहे थे, यहाँ पे ना अजम्पशन बहुत मार रहे हो, इधर का उधर, यहाँ का उधर. यस, हो गया. at the end of the day we get final equation correct,
वैल्यू मिल रहा है ना वहाँ पे। नहीं नहीं, यहाँ वहाँ पे क्या था, v इज इक्वल टू 2gm स्क्वायर रूट ऑफ 2gm बार, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, वहाँ पे घान हो रहा है यहाँ पे थोड़ा ओके सा। ठीक है, कंप्यूट वेलोसिटी फॉर अर्थ एंड मून, ठीक है देखते हैं। केप्लर्स लॉ, द ऑर्बिट ऑफ एवरी प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द टू फोकाई, ठीक है। आर इज इक्वल्स टू ए, ये एपेलियन पेरिलम वाला था ना, या एस ई स्क्वायर। नहीं नहीं, एपिलियन नहीं, आपका वो था ना t इज इक्वल टू a क्यूब, a आपका। अच्छा अच्छा वो वाला, हाँ हाँ, हम्म, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू e, ए क्यूब, हाँ, और a e इज द एसेंट्रिसिटी एक्सेंट्रिसिटी, ऑफ द ऑर्बिट हाँ जो भी है, एक्सेंट्रिसिटी है वो, हाँ वो तो बराबर है। एसेंट्रिसिटी, हाँ। सो या आर इज इक्वल्स टू ए इंटू वन माइनस ई स्क्वायर अपॉन वन अपॉन ई। एक cos थीटा लाइन कहाँ से आता है? आगे देखते हैं ना, लाइन जॉइनिंग ओके, planet and sun sweeps out equal area during equal interval of करेक्ट। time, ठीक है। The squares of the orbital period of a planet is directly proportional to the cube of semi-major axis of its orbit। अच्छा ये वाला, so ये फर्स्ट लॉ है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। जो आप बोल रहे हैं स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब, ये तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपन जी m1 प्लस m2 इंटू ए क्यूब। ऑर्बिट वेलोसिटी इज एक्सप्रेस्ड एज v स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम 2 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन ए। ये ना वो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में ही था ये सब, विजिट इट अगेन, ये सब उसमें है। क्या वापस एक्सप्लेनेशन लेना है क्या फट से? नहीं नहीं नहीं, 2gm/r दिख रहा है मेरे को कैसे बन रहा है। हाँ वो बाद तो में दिख रहा r है, को मुझे ए भी दिख करेंगे, रहा है। a को कुछ करेंगे, ऐसा कुछ तो फालतूगिरी हाँ करते हैं यहाँ पे। हाँ ठीक है। एस्ट्रोनॉटिक्स टेक्निक्स, होमन ट्रांसफर, ओके, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम 2r माइनस 1a, सो डेल्टा v1 इज इक्वल टू जी एम अपॉन r1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2r स्क्वायर अपॉन r1 प्लस r2 माइनस 1 एंड v डेल्टा v1। अच्छा आगे उन्होंने क्या सिंप्लीफाई किया है, ये तो वैसा ही है, अच्छा सॉरी ये चेंज हुआ है। अच्छा v1 इज इक्वल टू जी एम r2 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2r1 r अपॉन r1 प्लस r2। ये दोनों डिफरेंट पॉइंट्स पे लिया हुआ है, मतलब यहाँ पे 2r2 है, यहाँ पे 2r1 है, तो डिफरेंट पॉइंट्स पे लिया हुआ चेंज इन वेलोसिटी। या एक मिनट ना। ट्रांसफर फ्रॉम rp टू ra, ये सन है, दिस इज अर्थ ऑर्बिट, दिस इज सन ऑर्बिट, बाहर आपका मार्स रहेगा, एंड ये ऑर्बिट आप या फिर मून भी हो सकता है। नहीं नहीं ये प्लैनेट होना चाहिए ना, बिकॉज हाँ, ब्लू इज अर्थ, अर्थ है, तो ये ग्रीन कैन बी मार्स और कैन बी मून। जुपिटर। नहीं नहीं, जुपिटर का उतना नहीं करने मून वाले तो यार। यहाँ होगा ना, आई, हाँ कैसे चलेगा? अच्छा, अगर आप वैसा करें, हाँ हाँ, करेक्ट, दिस मून माइट नहीं हो बी सकता मार्स है। और जुपिटर, मार्स और मार्स बोल जुपिटर, सकते हो, करेक्ट चलो मार्स बोल सकते हो करेक्ट। मे बी। सो बेसिकली उन्होंने टू डेल्टा चेंज इम्पल्स दिया है शायद मेरे हिसाब से। सो दिस इज वन इम्पल्स एंड दिस इज सेकंड इम्पल्स, राइट? बिकॉज यहाँ पे अगर लॉन्च कर दिया सो इट हेयर, लेकिन अगर आपने एक कंट्रोल नहीं किया स्पीड, सो इट विल गो आउट लाइक दिस शायद। यू हैव टू स्टेबलाइज द ऑर्बिट अगेन। ओके देखते हैं आगे। डेल्टा वी बजट, when designing a trajectory, delta v budget is used as a good indicator of how much propellant will be required. Propellant usage is an exponential function of delta v in accordance with the rocket equation. It will also depend on the exhaust velocity. Okay, so let's see this. सन है, देन लो अर्थ ऑर्बिट है, देन अर्थ है। ओके, सो लूनर ऑर्बिट, मून यहाँ पे है, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट्स यहाँ पे है, जियो क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट्स है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, यस। दिस इज अर्थ C3 ऑर्बिट, मार्स ट्रांसफर ऑर्बिट ये है, मार्स C3 है, डीमोस ट्रांसफर है, फोबोस का ऑर्बिट है, लो मार्स ऑर्बिट है एंड मार्स है देन। ओके, कि डेल्टा वी ऑप्शनल एरो ब्रेक्स एंड ऑर्बिटल लोकेशंस। अच्छा ये ऑर्बिटल लोकेशंस है, ऑप्शनल एरो ब्रेक्स है, मतलब यहाँ पे जा रहा है एंड यू हैव टू ब्रेक इट, यहाँ पे जा रहा है, यू हैव टू ब्रेक इट, ब्रेक्स अप्लाई करना पड़ेगा ना, अदरवाइज इट विल
कीप गोइंग एंड मार्स Yeah. पहुंच गया तो मार्स के ऑर्बिट से निकलने के लिए यू हैव टू पुश इट अगेन डीप Mm-hmm. जाने के लिए, फोकस करने में जाने के लिए। अच्छा ठीक है। एस्ट्रोनॉटिक टेक्निक्स बाय इलिप्टिकल ट्रांसफर v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू 2 by r minus 1 by a। So delta v is equal to 2 mu upon r0 म्यू अपॉन a1 माइनस म्यू अपॉन r0 डेल्टा v2। अच्छा तो ये अलग अलग ऑर्बिट के लिए दिया है उन्होंने। 2 म्यू Mm-hmm. अपॉन आर बी म्यू अपॉन a2 नेगेट माइनस 2 म्यू अपॉन आर बी माइनस म्यू अपॉन a1 है ना, ये a1 ओके। एंड v3 ये थर्ड ऑर्बिट है। सो दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज सेकंड ऑर्बिट, दिस इज थर्ड ऑर्बिट। अलग अलग वो जो यहाँ पे एरो आ रहा है ना, ये वाले, ये वाले पॉइंट्स रहेंगे मेरे हिसाब से। हाँ वहाँ पे V1 क्या है? हाँ, तो ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, हम्म, ये ऑर्बिट है, तीनों। सो v3 चेंज इन डेल्टा डेल्टा v3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 म्यू अपॉन आर एफ माइनस म्यू अपॉन a2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ म्यू अपॉन आर एफ। यहाँ पे भी सर ने ना पॉइंट्स डालने चाहिए थे, इट वुड हैव। यस, बहुत अच्छा होता। अभी तो वो अज्यूम करना पड़ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। Astronautics techniques, slingshot effect. It is a technique to alter path and speed of spacecraft by using relative momentum and gravity of a planet, typically in order to save fuel and time, fuel or time. हम्म, It is widely used by interplanetary probes. Okay. Conservation of kinetic energy and momentum before and after the interaction requires mu1 square plus mv1 square is equals to mu2 square plus mv2 square। mu1 minus mv1 is equals to mu2 minus mv2। therefore v2 will be, अच्छा ये पहले तो ये टर्म इधर लेके आएंगे, सो ये प्लस हुआ, दीज ऑल टर्म्स विल गो हेयर। v1 है एंड 2u है, ओके। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4uv1 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन v1 प्लस 2u का स्क्वायर। ओके, सो ये सब यहाँ से निकाला है, आई डोंट इवन नो ये सब एक्सप्लेन। भाई इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, मेरे दिमाग से बाहर है हम्म। बस, ज़्यादा कन्फ्यूजन। सो आस्क द एक्सपर्ट। हुआ defect. It is a technique to alter path, ठीक है। A spacecraft goes near the moving planet, uses its gravity and motion, gains or loses speed without using fuel, typically used to save time or fuel. Instead of burning fuel, use planet's motion like moving swing, get a speed boost for free. Widely used interplanetary probes Voyager and Cassini, ठीक है। Two reference frames, very important. Planet's rest frame, planet is stationary, spacecraft comes in, bends and leaves with speed, same speed, only direction changes, not speed. हाँ बरे, correct. Solar reference frame, planet is velocity u, now spacecraft speed can increase or decrease, this is where slingshot magic happens. Velocity understanding, vx vy components of spacecraft velocity, u is velocity of planet, okay. Key relation in solar frame, spacecraft velocity is relative velocity plus u, that is velocity of before v1 plus u, after v2 plus u, ओके। तो ये स्लिंगशॉट इफेक्ट मिलने के बाद का स्पीड है। कंजर्वेशन लॉस, कोर फिजिक्स, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक इक्वेशन, पहला वाला स्पीड शुड बी अगला, आई मीन
फर्स्ट एनर्जी इज कंजर्व, हाँ तो V1 जो should be एनर्जी, V2. हाँ, यस, Mass of planet and mass of spacecraft, ठीक है, small m mass of total kinetic energy remains same, conserved momentum, total mass, total momentum conserved. ओके, यहाँ से खाली स्क्वायर हटाया ना इन्होंने, नहीं, ओके, नहीं, अरे स्क्वायर कंजर्वेशन ऑफ नहीं हटाया मोमेंटम है, भाई, एनर्जी है और हाँ मोमेंटम दोनों हाँ, को ओके कंजर्व ओके कर रहा है। ओके, मोमेंटम का इम- फॉर्मूला क्या है? मास इनटू हाँ वेलोसिटी, हाँ हाँ, दैट्स इट। हाँ, important simplification, since mass of planet is greater दम, than mass of rocket or spacecraft, हम्म, correct, planet velocity almost doesn't change, yes, करेक्ट, तो velocity यूज यू, होगा यार उससे, हम्म, key idea of from simplification, because planet is huge, it gives or takes tiny energy, spacecraft gains or loses noticeable speed. Deriving velocity change, core idea, in planet frame speed remains same, v initial, v in is equal to v out, okay, only direction changes by angle theta. Convert back to solar frame, velocity before, v1 is equals to u1 plus v, and v2 is equals to u2 plus v, v2 plus v, sorry, final velocity formula, v2 is equals to v1 plus 2u, वन, अच्छा लेट्स अंडरस्टैंड, इसको ही अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप, टर्म v1 plus 2u, max possible boost, happens when spacecraft swings perfectly behind planet, okay, term square root part, this accounts for turning angle theta, not always perfectly aligned, special case very important, if theta is 0 degree, cos theta will be 1, then v2 is equal to v1 plus 2u, यही वाला हो जाएगा, maximum speed gained, okay, planet is moving, carries huge momentum, spacecraft steals a tiny bit of it, result, spacecraft speed changes a lot, simple analogy, space, planet, fast moving train, space ball is ball, spacecraft is ball, throw ball against train, slows down with train हम्म, moves up, okay, slingshot effect, using moving gravity to change velocity without fuel, okay, ठीक है, प्लैनेट का स्लिंगशॉट इफेक्ट इन्होंने लिया है, astronomical techniques, slingshot effect, it is a technique to alter the path, सेम ही तो दिया है वापस से, इट्स वाइडली यूज फॉर प्लानिटरी, सन है प्लानिटरी, सन है प्लानट फ्रेम है, क्या है ये, सेम ही लग रहा है मुझे सब कुछ, कैन यू नोटिस एनीथिंग, देख रहा हूँ भाई, चल क्या रहा है वहाँ पे रुझान। फ्रेम ए आया, बी आया, सी, ठीक है, लेट्स सी दिस आफ्टरवर्ड्स, अभी तो नहीं समझ रहा मुझे भी ज़्यादा क्लियरली, और इतना डॉट से लिख दिखा है, खाली कुछ भी नहीं दिखाया, और इंटरप्लानेटरी मिशन पाथ्स, वॉयजर 1 कैसे निकला, प्लैनेट्स का असिस्ट लेते हुए निकला वॉयजर 1 और वॉयजर 2, वन ने, अच्छा वॉयजर 1 का कम स्पीड इसके लिए है क्योंकि उसने यूरेनस और नेपट्टून का असिस्ट नहीं लिया है, वॉयजर 1 का स्पीड कम है, वॉयजर 2 का स्पीड ज़्यादा है, ओके, नाउ आई गेट इट व्हाई वॉयजर 2 हैज ट्रैवल्ड मोर डिस्टेंस, स्पेस मैन्यूवर्स, यहाँ पे है अर्थ, अच्छा पहले यहाँ से शुरू करते हैं, अर्थ फ्लाई बाय अक्टूबर 13, यहाँ पे है, अच्छा लॉन्च है पहले अगस्त 2011, अर्थ का फ्लाई बाय हुआ, अर्थ ऑर्बिट है, डी स्पेस मैन्यूवर जुलाई टू सितंबर 2012, जुपिटर अराइवल, एंड ऑफ मिशन जुपिटर ऑर्बिट में स्टेबल हो गया, ओके, प्लानिटरी मिशंस ऐसे यूज़ किए जाते, ऐसे किए जाते, सो वो जूनो और कसिनी जो गए थे वो इस तरह का यूज किए होंगे, 50 मैसेंजर टू मर्क्यूरी, हाँ ये डिफ़िकल्ट था ना भाई, नहीं डिफ़िकल्ट है, पहले कहाँ से शुरू किया है वो देखने दो, स्टार्टिंग विद डीप स्पेस में, नहीं नॉट, वो नहीं, सॉरी, लॉन्च यहाँ पे स्टार्टिंग है, विद अर्थ से, हाँ, लॉन्च यहाँ पे है, ओके, वो कलर दिया है ना, देखो नीचे का कलर दिख रहा है आपको, नीचे का जो लाइन है, ये वाला, हाँ वो ऑर्बिट चेंज हो रहा है तब बता रहा है। हाँ, चलो कम से कम कुछ तो दिया है, नहीं, ये विकी से दिया सर ने, मेरे को पता है। अच्छा यहाँ पे है, हाँ, लॉन्च है 16.4 किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर का स्पीड है, ओके, देन यहाँ पे स्पीड अप हुआ, देन फिर वापस अर्थ का असिस्ट लिया, ऐसा, अर्थ के असिस्ट लेके फिर नेक्स्ट ऑर्बिट, मतलब नेक्स्ट DSM स्टेज, 1,
हाँ DSM-1 ये है. सो ये यहाँ से ये ऐसा आया फिर. यस Here it comes here DSM-1 and it और फिर वीनस के यहाँ पे वीनस में आ गया तो ग्रीन कलर आ जाएगा वीनस के ऑर्बिट में आया. हाँ हाँ ओके वीनस के ऑर्बिट में आया. वीनस के ऑर्बिट से ग्रीन में गया. ग्रीन देन उसका स्पीड अंदर गया. ग्रीन देन DSM-2. वेयर इज DSM-2? ऑरेंज वाला ऑर्बिट. भाई ये बहुत डेंजर चीज. वीनस के 2 फ्लाईबैक किए गए आपने नहीं ये एक अच्छा ये एक हुआ. हाँ दूसरा हुआ. हाँ फिर बाद में वो एंटर करता है डीप स्पेस मैनूवर करके वहीं पे वीनस पे ही करता है सेकंड DSM. बाय DSM-2 यहाँ पे. हाँ एंड देन वो एंटर करता है मर्क्यूरी के ऑर्बिट में जहाँ पे वो 3 बार मर्क्यूरी के साथ घूमेगा. ओके DSM-3 4 5. हाँ ओके यस MOI मर्क्यूरियन ऑर्बिट. तब जाके वो हुआ मर्क्यूरी के ऑर्बिट में. सोचो ना अर्थ से वो निकला 2004 में मिशन था मर्क्यूरी पहुंचा हाँ. 4 साल बाद हाँ ना. लाइक दस उससे कम टाइम में तो जुपिटर पे पहुंच जाते हैं लोग. बट वही तो है कि मर्क्यूरी सन इतना बड़ा प्रॉब्लम दे रहा है. हाँ एग्जैक्टली. Artemis 2 wow. The 10-day mission will carry astronaut to moon. हाँ मार्च में हुआ ना मार्च नहीं अप्रैल कभी अप्रैल 1 अप्रैल हाँ सब लोग बोल रहे थे ना कि फ्लैट अर्थर्स के लिए एंड पीपल आर लाइक फ्लैट अर्थर्स बोलेंगे कौन से दिन निकाला उसको बता अप्रैल फूल तुम्हारा चूतिया काटा. The flight will take the crew farther from Earth than any previous human missions before re-entering Earth's atmosphere at record speed of approximately 25,000 miles per hour, 40,000 kilometers per hour. Wow, बहुत स्पीड है. May be launched around 6/5/2026 जो लॉन्च हुआ अप्रैल में. Plan to create deep space gateway. Plan to create habitable mobility platform lunar cruiser to the surface of the moon by 2033. Distant retrograde orbit DRO provides a highly stable orbit where little fuel is required to stay for an extended trip in deep space. DRO is highly stable because of its interaction with 2 points of this planet moon system where objects tend to stay put balanced between the gravitational pull of 2 large masses. Okay, the orbit is distant in the sense that it's at a high altitude from the surface of the moon, that is 60,000 kilometers, and it's retrograde because Orion will travel around the moon opposite the direction of moon travels the earth. Okay. यहाँ पे कितना कुछ लिखा है. ये कैसे भाई उसका ट्रैजेक्टरी बहुत ब्यूटीफुल है इसकी कहाँ से शुरू हुआ है. आर्टेमिस की. नहीं वो ठीक. हाँ वो कहाँ से शुरू हुआ वही देख रहा हूँ मैं. यहाँ से शुरू हुआ ना. एंटर्स रेट्रोग्रेड अरे नहीं मैं भी देख रहा हूँ नहीं यहाँ से शुरू हुआ है. DRDO डिपार्ट से देखो. अच्छा नहीं रिटर्न टू अर्थ है ये तो. लूनर ऑर्बिट इंसर्शन. हाँ ये हाँ इंटर डिस्टेंट रेट्रोग्रेड ऑर्बिट. यहाँ से गया देन ऐसे घूम के वापस आया तब इसको वापस से टर्न करना पड़ता है. अच्छा सॉरी ये देखो ऐसे आया है वैसे आके ग्रीन हाँ ऊपर लैंड करेगा या यहाँ पे गया वापस यहाँ से पीछे से आया इधर आया. अरे उल्टा कर अरे आप क्या देख रहे हो एंटरिंग वापस अर्थ वाला देख रहे हो वो ऑर्बिट. वो ब्लू जो ऑर्बिट. हाँ ब्लू है हाँ इट इज आई थिंक रिटर्निंग टू अर्थ. हाँ तो ग्रीन यहाँ शुरू हुआ से ऐसा गया इधर गया एक. अरे ग्रीन का एरो देखो एरो कहाँ है ग्रीन का. कहाँ से शुरू हुआ. यहाँ से शुरू हुआ है. हाँ वहां से ग्रीन से शुरू हुआ अर्थ से निकला है. सॉरी हाँ यहाँ से शुरू हुआ एक अर्थ का एक छोटा सा सर्कल मार के फिर यहाँ पे गया यहाँ से रेट्रोग्रेड ऑर्बिट में एंटर किया. से ऑर्बिट हुआ ब्लू में. फिर यहाँ से वापस से अर्थ के लिए रिटर्न गया. या मून का एक वापस से क्लोज फ्लाई बाय लिया. फिर यहाँ पे आया एंड रिटर्न करके यहाँ पे एंटर पानी में लैंड कर लेगा. ओके ठीक है. हाँ भाई दिस इज नॉट इजी. मैन्यूवरिंग इज नॉट एट ऑल. क्वेश्चंस नेक्स्ट क्वेश्चन. ये नेक्स्ट स्लाइड देखो. स्पेस फ्लाइट एक और स्लाइड बाकी है. स्पेस एजेंसी आईएसएस डॉकिंग. ये तीनों मैंने यूज मतलब ये दोनों डाउनलोड करके रखा है और अभी तक ओपन नहीं किया है. मेरा भी मैंने रिसेंटली खोला ये क्या
वापस अचानक से टॉपिक आएगा लाइक व्हाट, कौन Monthly कैसे orbit is बना a रहा type of satellite orbit designed to provide है? communications and remote sensing coverage over high latitudes. Okay, it is highly elliptical orbit with an inclination of 63.4 degrees, an argument of perigee of 270 degrees, and an orbital period of approximately half a sidereal day. क्या लिखा है यहाँ पे? लेट मी चेक. अच्छा, आवर्स में लिखा है आवर्स में 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर 5 6 7 8 9 10 11 आवर्स यहीं पे रहता है. ओके, 12 आवर्स का ही उसका है ऑर्बिट का. ओके, एंड एक ही घंटा उनसे दूर रहता है वो, बाकी 11 घंटा उनके स्पेस में रहता है. इट्स वेरी गुड डिज़ाइन यार, बहुत मस्त डिज़ाइन किया है ऑर्बिट जो भी है. ओके, एनीवेज वी आर डन. वी शुड स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ. या और कुछ याद है इसमें कुछ बोलना है? अदरवाइज वी विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग. मेरे को भी याद नहीं, मैं आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वो जो आपने बोला ना स्लिंगशॉट मेथड का, वो डायग्राम नहीं समझ रहा है, वो मेरे को समझा थोड़ा सा, हल्का सा, ज्यादा नहीं. ये जो ABCD है या तो वो नीचे वाला वो चला गया, पेज नंबर ये वाला? 48. हाँ दिस वन. या तो सर ने ABCD ऑप्शन के लिए पूछा रहेगा कि बच्चों से क्या होगा आगे या फिर प्लैनेट. देखो सन के फ्रेम से क्या होगा, प्लैनेट मूव कर रहा है और शिप भी मूव कर रही है. हाँ अगर प्लैनेट के रेफरेंस से देखो तो प्लैनेट स्टेशनरी है, शिप सिर्फ मूव कर रही हाँ. है ना. आगे का मेरे को नहीं समझा ABCDFG में क्या है. आई एम थिंकिंग सर ने पूछा कि लाइक बच्चों पता आगे क्या होगा मुझे ऐसा लग रहा है. हाँ, बट इसमें मुझे सेम ही दिख रहा है, अलाइनमेंट भी कुछ हाँ इट इज जस्ट कि ना वो इमेजेस प्लैनेट्स की लग रहा है, पोजीशनिंग चेंज हो रही है, दैट्स इट. कोई बंदा ना क्या बोलते हैं ना, डीप क्या बोलते हैं ना, एस्ट्रोफोटोग्राफी करता तो अलाइन कर रहा था, कैलिब्रेट, क्या बोलता है वीर, वर्ड क्या रहता है, पैनिंग, पैनिंग नहीं नहीं नहीं, प्लेट सॉल्विंग प्लेट सॉल्विंग कर रहा है. मेरे को ऐसा लग रहा है. मेरे को भी वही लग रहा है. चलो ठीक है, लेट्स स्टॉप द यस